today with us from our management representative, Babulal Ji Todi sir. He's there. Sir, you just say hello. Sir is here. Babulal Ji Todi sir. Hello. A warm welcome to you, sir. Thank you. We also have our Vice President of our trust, Nirmal Jhunjhunwala sir. And also definitely, Hello. Yeah, hello sir. All our dear students and teachers, a very warm welcome to all of you. And also, definitely the whole webinar is happening because of a resource person, Mr. Prajesh Trotsky. Welcome, sir. Mr. Prajesh, warm welcome to you from Good morning. From Ghanshyam Das Jalan College. Very warm welcome to you. And we are so excited to hear you because the topic itself is such graphology and everyone wants to know because most of us who are all literate, I would say, do write. And when we write, we would like to analyze it to know our personality. And not only that, probably that can help us to analyze others' personality also with the handwriting. And I should thank you once again from our trust, ABVM, Agrawal Jatia Kosh, at the same time from GD Jalan College and all our management trust members, management committee members, all our teachers and our dear students. We extend a very warm welcome to you and also would like to know from you that this particular area of study, graphology, we are like novice here. We don't know anything about it, but would like to hear more and more from you on right from the beginning, how it started and how this came as an area of study. Over to you, sir. Thank you so much for accepting our invitation in a short notice of time. Thank you. So all are able to see the screen? Yes, sir. So good morning, everyone. Welcome to all the students, teachers, the trustees of the wonderful college at Malad. I had visited once earlier. So welcome all of you. So let us start without wasting much time. So can people converse to the chat box? Can they talk to the chat box? Can the students type in the chat box or is it enabled or We will disabled? take all the question answers at the end. So we would like to hear from you first. Yeah. Fine. So let us start with the topic that is explore your life like never before, because handwriting and signature analysis will help you to explore your life. What is your real personality? As madam was mentioning, it's we all write, so every writing has certain personalities to be shared and to be known. So let us one by one understand what is this exactly the science all about. So we are talking about a science called as graphology. हम सब ने ये लॉजी करके वर्ड सुना रहेगा, बायोलॉजी. So logy means study and bio means life. The study of life is called as biology. So same में यहाँ पर logy means study and graph means graph of your life. So study of the graph of your life is called as graphology. So what is the graph of your life? So your handwriting and signature is the graph of your life. आपकी handwriting और आपकी signature आपकी जिंदगी का graph है. For example, how come? So this is the signature of one girl. She was in 10th standard 2 years back. जब वो 10वीं में पढ़ती थी, so she had some challenge. So she came to me for counseling. So इनका ये signature है. So on the day of the exam, she used to fall sick. जब भी exam आएगा उसको बुखार आता है. And she has to take medication, injection. Then she used to go for the exams. And it was happening from last 3-4 years. 3 से 4 साल से लगातार उसके साथ ये हो रहा था कि जिस दिन एग्जाम आएगा उसको बुखार आएगा, then इंजेक्शन लेना है, मेडिसिन लेना है, फिर then एग्जाम लिखने जाना है. She was scoring 80+, but still she had this problem every single exam. So she came to me for counseling. I saw her signature. तो जब इस सिग्नेचर को ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, if you see this signature properly, ठीक है ना? So the graph is nothing else but this is the graph of her signature. So if you see it carefully, ये graph है. This is the graph. It is going up. The underscore is going up, taking a U-turn. वहाँ से U-turn लेकर again coming down and again going down. तो जब हम overall देखेंगे, तो ये signature it is starting where and it is ending where. फिर से आप देख लेना where it starts
इवन दो इट इज गोइंग अप, अगर वो ऊपर जा भी रहा है बट ऊपर जाकर यू टर्न लेकर अगेन इट इज कमिंग डाउन एंड ओवरऑल द सिग्नेचर इज गोइंग डाउन. सो दिस इज हर पर्सनैलिटी. सो व्हाट वाज द चैलेंज? सो आई जस्ट आस्क्ड हर कि बचपन में या कौन सी भी एक स्टैंडर्ड में किसी ने आपको डांटा था, मारा था, एग्जाम्स लिखते टाइम या कुछ तो गड़बड़ हुआ था? तो शी सेड यस. इन वन एग्जाम शी स्कोर्ड लेस, बहुत कम मार्क्स आ गए, ड्रास्टिकली 50% मार्क्स उसके एक आधा कम हो गए थे. तो उनकी मम्मी थोड़ी अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ मम्मी थी. अथॉरिटेरियन मतलब मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बहुत जोर से उसको एक दिन डांट दिया था. माँ बाप का इंटेंशन बच्चा इसी बहाने सुधरे होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं जिनको ऊंची आवाज सेट नहीं हो पाती है. और उसकी मम्मी एग्जाम जाते टाइम उसकी मम्मी ने जोर से, इस बार अगर तूने कम मार्क लेकर आया तो फिर देख लेना करके साउंड उसके दिमाग में बैठ गया. और उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग, उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई. एंड द डे ऑफ द एग्जाम शी गेट्स अ सिंकिंग फीलिंग, शी टेक्स अ यू टर्न. अरे बाप रे, फिर से अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो फिर से मैं डांट खाऊंगी, हाँ मुझे भूल ना जाओ, कम मार्क आ जाएगा मुझे. एंड शी स्टार्टेड टेकिंग अ यू टर्न एंड सिंकिंग फीलिंग उसको आने लगा. और इंसान के अंदर जब भी एक सिंकिंग फीलिंग आता है, उसका जो है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो सरेंडर हो जाता है. और जब भी इम्यून सिस्टम सरेंडर होता है तो उसके शरीर में जो वायरसेस होते हैं वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको बुखार आना स्टार्ट होता है. एंड दिस वाज हैपनिंग रिपीटेडली फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. माय फ्रेंड्स, कोविड में भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है. कोविड से लोग कम मर रहे हैं, लेकिन डर से, सेल्फ एस्टीम डाउन होने से, इम्यून सिस्टम डाउन होने से शरीर के दूसरे सब बीमारियां होती हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है, आर्थराइटिस होती है, डायबिटीज होता है, ये शूटअप हो जाता है और जिसके वजह से इंसान मरता है. तो सेम भी यहाँ पर इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है एग्जाम के दिन. वो साउंड बार बार उसको याद आता है, इस बार अगर कम मार्क आया, and all those things, and she started have a sinking feeling. And my friends, this signature can also lead to suicide. ये सिग्नेचर आगे आने समय में जाके सिंकिंग फीलिंग बढ़ जाएगा और ये बच्ची सुइसाइड भी कर सकती है. मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट चेंज्ड हर सिग्नेचर दिस वे. वीएस नायक लिखने कहा और अंडरलाइन करने कहा, दैट्स इट. और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट अंडरलाइन इट एंड वीएस नायक करके खत्म कर दिया. I made her to practice 50 times in a day for 50 days. Now she's out of this thing. No medicines to be taken, nothing to be taken. So that means this is what is, my friends, called as graphology. इसे graphology कहते हैं. The graph of your life. Your handwriting and signature. The graph. आपकी handwriting and signature ये आपका graph है. Simple बात है. So let us understand it further. So why graphology? जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, जैसे कि आप सबके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, तो वैसा आपकी हैंडराइटिंग भी यूनिक होती है. आप जैसा लिखते हो दूसरा कोई नहीं लिख सकता. अगर आपकी हैंडराइटिंग में लेकर 1000 हैंडराइटिंग सैंपल में मिक्स कर दूं, आप आपकी हैंडराइटिंग सैंपल ढूंढ पाओगे. इज बिकॉज योर हैंडराइटिंग इज यूनिक. हम सब ने बचपन में कभी नोटबुक सबमिट करते टाइम कभी कभी हम गलती से हम अपना नाम लिखना भूल जाते थे नोटबुक के ऊपर, और नाम वगैरह नहीं होता था, टीचर करेक्शन ला कर देती थी. एंड शी यूज्ड टू आस्क, हु इज दिस शेमलेस बॉर्न हु हैज नॉट रिटन द नेम? तो बच्चा बोलता था, सर इट इज माइन, ये मैं हूँ, जबकि उस पर नाम नहीं लिखा है. फिर भी आपने उस नोटबुक को क्यों आइडेंटिफाई किया? बिकॉज वो आपकी हैंडराइटिंग है और आप उसको अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो नो टू पर्सन विल हैव एवर द आइडेंटिकल हैंडराइटिंग. इट इज वेरी मतलब इम्पॉसिबल है कि दो जन की हैंडराइटिंग सेम हो सकती है. कुछ चीजें इधर उधर सेम बट पैटर्न्स टोटली अलग होते हैं. हेंस इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक पर्सनालिटी. सो हैंडराइटिंग इज द फेथफुल एको ऑफ योर रियल पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी का फेथफुल एको है. आपके बारे में हर वो चीज बताता है जो आपको खुद को मालूम नहीं है कि आपके अंदर ये पर्सनालिटी है. सो हैंडराइटिंग इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड. हैंडराइटिंग आपके माइंड का एक्सरे है. अभी आपने ब्रेन में प्रॉब्लम होगा तो आप सीटी स्कैन निकाल सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है तो एक्सरे निकाल सकते हैं, ब्लड में प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं. कोई भी ऑर्गन्स में कुछ भी चैलेंजेस रहेगा तो आप सब ये टेस्ट करा सकते हैं और आपके ऑर्गन्स के चैलेंजेस आपको मालूम पड़ जाएगी. बट अगर आपके मन में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें? अभी मन इज नॉट एन एनाटॉमिकल ऑर्गन. ये जो माइंड है ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक विचारों की पूंजी है जो बचपन से माँ के कोख से लेके 14 साल की उम्र के बीच में हमको कई सारे थॉट्स दिए जाते हैं. और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. जो भी थॉट्स हमको मिला
उस थॉट्स को पकड़कर हम हमारी जिंदगी को जीते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बारिश में भीगो के सर्दी होगा, बुखार आएगा। तो मम्मी ने ये थॉट बचपन में दे दिया था, बारिश में भीगने से सर्दी बुखार नहीं आता है, बारिश में भीगे हुए कपड़े पहनकर रहने से सर्दी बुखार आ सकता है। तो मैं हमेशा बारिश से भागता फिरता था और हमेशा डरता था बारिश से। तो एक बार स्कूल से आते टाइम बारिश जोर से गिर गई, रेनकोट नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था, भीग गया और अगले दिन सर्दी खांसी बुखार आ गया। तो हमें हमेशा बारिश से भागता फिरता। फिर कई सालों के बाद 26 जुलाई हुई जिसमें पूरा बम्बई डूब गया था और 2 दिन तक तो पूरे बम्बई में बारिश हो रही थी। उस टाइम पे ना मुझे सर्दी हुई, ना खांसी हुई, ना बुखार आया, क्योंकि उस वक्त में ये जो मम्मी ने थॉट दिया था कि बारिश में भीगोगे तो सर्दी होगी, बुखार आएगा, ये थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बिकॉज उस टाइम जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो थॉट बदल गया, थॉट आया नहीं तो बुखार नहीं आया। तो ऐसे कितने सारे सही थॉट, गलत थॉट हमारे पेरेंट्स के जरिए, हमारे टीचर्स के जरिए, हमारे समाज के जरिए, हमारे एनवायरनमेंट के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, सबके जरिए, राइट और रॉन्ग हमको मालूम नहीं, हमको ऐसे सब थॉट्स मिल जाते हैं और इसी थॉट्स के जरिए हमारा ग्रोथ होता है। और हमारे लाइफ का परसेप्शन, परसेप्शन इज पर्सनल रिसेप्शन, पर्सनल रिसेप्शन, इसको परसेप्शन कहते हैं। और इस परसेप्शन से हम हमारे जिंदगी को जीते हैं। कोई बोल दिया रहेगा पेरेंट्स, हम गरीब लोग हैं बेटा, हम ज्यादा सोच नहीं सकते, खत्म, ये एक परसेप्शन है। फलाना कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते, ये एक परसेप्शन है। ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये गुजराती लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये सब परसेप्शन है, पर्सनल रिसेप्शन है। मैं कुछ नहीं सर, गरीब लोग ज्यादा कुछ नहीं, ये सब परसेप्शन। मैं जिंदगी में ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, स्कूल कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई, ये सब परसेप्शन है आपका। तो ये सब परसेप्शन के साथ, एवरी बॉर्न चाइल्ड इज जीनियस, हर पैदा हुआ बच्चा जीनियस है। अगर बच्चे बैठे हैं आप सब जीनियस हो, लेकिन 2% जीनियस बनते हैं, बिकॉज हम कितने सारे थॉट प्रोसेस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये काबिल नहीं है, वो नहीं हो सकता, तू कुछ काम का नहीं है, तुझे मैथ्स नहीं आता, तू गधा है, तुझे अकाउंट्स नहीं आता, ये सब परसेप्शन। रोड क्रॉस करने बराबर आता है, टीचर ने क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सिखाने के बाद हम रोड क्रॉस करना सीखे थे क्या? नहीं, हम दूर खड़े थे कि गाड़ी की स्पीड को जज करते थे, डिस्टेंस को जज करते थे, टाइम को जज करते थे और कहते थे कि रोड क्रॉस नहीं कर सकता मैं। कितना पावरफुल मैथमेटिक्स आपके दिमाग में बचपन से पड़ा हुआ है। लेकिन एक पर्सन, मुझे मैथ्स नहीं आता, किसने बोला? तो मम्मी डैडी ने बोला। किसने कहा? तो किसी ने कह दिया। बड़े भाई ने बोला मैथ्स वो टफ सब्जेक्ट है, तो हम भी ये परसेप्शन लेकर चलते हैं, अकाउंट्स वो टफ है, इकोनॉमिक्स हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग यू बैक इन द नेक्स्ट एग्जाम। ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत बोलते हुए मैंने सुना है, इकोनॉमिक्स में इतनी ताकत है कि वापस से आपको बोर्ड एग्जाम लिखने लगाएगा। ये सब परसेप्शन है। किसने कहा? ये सब थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में रहता है और इस थॉट प्रोसेस को हम ग्राफोलॉजी के जरिए पकड़ते हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ है, सब लोग के पास, तो लिखो। 8 से 10 लाइन आपके बारे में लिखो। अगर इफ यू कैन राइट समथिंग, कैरिड सम बुक, बिकॉज अगर आप हैंड राइटिंग अगर आप देखोगे, मैं कुछ पर्सनालिटीज के बारे में आप पे शेयर करूंगा। तो क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके बारे में आपको 8 से 10 लाइन लिखना है, 8 to 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, क्या लिखोगे? एवरी लाइन शुड स्टार्ट विथ आई, हर लाइन आई से शुरू होनी चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स। जो भी आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, आप 8 से 10 लाइन अपने बारे में लिखेंगे। एक 2 से 3 मिनट, मैं आपको 5 मिनट देता हूं। सब लोग लिखने के बाद फिर मैं कुछ यहाँ पे ट्रेड्स बताऊंगा। आप सब लोगों को आपके हैंडराइटिंग में इस चीज को देखना है और पता लगाना है कि आपके अंदर कौन सी वाला ट्रेट है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सब लोग लिखेंगे 8 to 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। 8 से 10 लाइन लिखेंगे। मैं 2 से 3 मिनट टाइमर लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप देख लेना कि क्या कैसा करे। मैं फिर उसके बाद आगे की पर्सनालिटी, तो 11:51 हो चुके हैं, तो मैं 11:54 को आगे का स्लाइड्स को बताऊंगा। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। 8 to 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ, क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ग्रेट, स्टार्ट राइटिंग।
1 more minute. चलो, सो स्टॉप राइटिंग. आपका 6 या 7 लाइन भी अगर हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड, फाइन. सो अभी एकदम ध्यान से स्क्रीन पे एक एक पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करेंगे. मैं 6 डिफरेंट ट्रेड्स आपके हैंडराइटिंग के पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा. आप आपके हैंडराइटिंग में चेक कीजिए. जो सही वाला है वो भी बताऊंगा, जो गलत है वो भी बताऊंगा. सब चीज़ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो रेक्टिफाई करना है, जो बदलना है, वो मैं बताऊंगा. जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो ये 6 से 7 पैरामीटर मैं लोगों के हैंडराइटिंग के अंदर मैं बदलवाता हूं ताकि उनकी पर्सनालिटी बदल जाए. तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे, लोग बैठे, अगर आपने आपके हैंडराइटिंग के जरिए जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बदल दिया, अगर ऑलरेडी आपके हैंडराइटिंग में, तो यू शुड पैट योरसेल्फ. यू शुड से यस, वेरी गुड, आई हैव इट. इफ यू डोंट हैव इट, स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम टुडे. कैसा करना है, प्रैक्टिस करना है, सब बताऊंगा. यानी कि फ्री वाले सेशन में मैं वो 6 चीजें बताऊंगा जो मैं पेड वाले सेशन में 15,000 रुपये लेके मैं बताता हूँ. चलो लेकर जाओ. तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि फ्री में भी इतना दे देना कि सामने वाला खुश हो जाना चाहिए. मैं देखता हूँ कि कौन कौन अपनी जिंदगी को सुधारेगा. मैं जानता हूँ कि सब लोग, जो भी बच्चों ने यहाँ पर, जो भी इंसान सामने बैठा है, मैं जो कह रहा हूँ ये 6 पैरामीटर्स अगर आपने अपने हैंडराइटिंग में बदल दिया, आने वाले 20 दिन, 21 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, जो भी प्रैक्टिस करेगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा. इधर बैठे हुए सभी बच्चों के लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर रोज आपने 30 से 35 मिनट रोज अगर प्रैक्टिस किया. तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक करके. बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. इसको लेकर जाइए और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए. नॉलेज जो होता है सभी धनों से प्रदान होता है. विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम. आपके घर में जो एक चोर आएगा, आपका मोबाइल फोन, टीवी वगैरह सब चुरा के लेके जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज को कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता है. आपका बड़ा भाई बड़ा होने के बाद आपका प्रॉपर्टी, डैडी का सब चीज छीन लेगा, लेकिन तेरे नॉलेज को कोई छीन कर नहीं लेके जा सकते. इसके लिए पढ़ाई करनी है हम लोगों को. इसके लिए लड़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है. बिकॉज ये जो नॉलेज है ये आपको कभी भूखा नहीं सोने देगा, आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा. तो आज ये नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ. टेक इट बैक हो और उसको इम्प्लीमेंट करो. तो सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको स्लांट कहते हैं. स्लांट का मतलब इस किस दिशा में आपकी हैंडराइटिंग जाती है, इन विच डायरेक्शन योर हैंडराइटिंग गोज. तो ये पहला वाला अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ है. कैन यू सी, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. पहला वाला जो है, सेकंड वाला जो है, ये स्ट्रेट खड़ा है. द हैंडराइटिंग इज स्टैंडिंग स्ट्रेट. थर्ड वन, इट इज लीनिंग टुवर्ड्स द राइट. देख लो आपके हैंडराइटिंग में रहेगा ये. फर्स्ट वन इज लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट के तरफ जाएगा. Second one, it will stand straight. Third one will lean towards the right. हल्के से आगे की तरफ ये लीन करेगा. So when you see the overall handwriting, अगर आप पूरी handwriting को overall देखोगे तो ऐसा दिखेगा. फर्स्ट वाला लेफ्ट के तरफ रहेगा, कोई ना कोई जन यहाँ पर रहेंगे जिनका लेफ्ट के तरफ रहेगा. सेकेंड वाला स्ट्रेट खड़ा है, इट इज स्टैंडिंग स्ट्रेट. देखो आपके हैंडराइटिंग में देख लेना. थर्ड वन, इट इज लीविंग टुवर्ड्स द राइट. देखो हल्के से आगे की तरफ झुकाव है. अभी ध्यान से सुनना. कुछ लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड भी रहेगा साथ में, कुछ लोगों का सेकंड एंड थर्ड भी रहेगा, और कुछ बादशाह लोग तीनों स्टाइल में लिखते हैं. देयर आर सर्टेन पीपल, दे विल राइट इन ऑल द 3 वेज. ठीक है. सो ये एक पर्सनालिटी है. तो फर्स्ट वन इज लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, सेकंड वन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, the third one is leaning towards the right. Once again, certain people will write the first way, second way, or the third way. Certain people will have a mixture of first and second and third, and certain people will have all the 3. Sometimes first, sometimes second, and sometimes third. तीनों पर्सनालिटी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे. अभी फर्स्ट वाला जो है, जो लेफ्ट की तरफ लिखता है, सेकेंड वाला स्ट्रेट लिखता है, थर्ड वाला, ठीक है ना,
राइट के तरफ लिखता। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे फिर भी अपने माइंड में ये जवाब को सोच लेना। हाँ, आप अपने मन में ये जवाब को सोच लेना, और मैं आंसर भी वही दे दूंगा। विच पर्सन, ध्यान से सुनना, विच पर्सन विल ऑपरेट फ्रॉम द पास्ट, which person will operate in the present, and which person will operate towards the future। ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है। अब 100% आपके दिमाग में यही आता रहेगा कि फर्स्ट वाला पास्ट से ऑपरेट कर रहा है, देखो लिखने का स्टाइल देखो, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सेकेंड वन विल ऑपरेट इन द प्रेजेंट एंड थर्ड वन विल ऑपरेट टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो जो भी ऐसा लिखते हैं तो फर्स्ट वाला पास्ट से ऑपरेट करता है, सेकेंड वाला प्रेजेंट में जीता है, और थर्ड वाला काफी फ्यूचरिस्टिक रहता है। सर मतलब क्या, ध्यान से सुनना। नाउ आई एम एन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। तो अगर मैं एक प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ टू टेक द परमिशन टू कंडक्ट दिस सेशन इन द स्कूल और द कॉलेज, एंड इफ द प्रिंसिपल इज राइटिंग द फर्स्ट वे, अगर वो प्रिंसिपल फर्स्ट तरीके से लिखता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, तो मैं इनको बोलूंगा सर माय नेम इज प्रजेश ट्रस्की एंड आई एम इनटू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, आई वुड लाइक टू कंडक्ट लॉट ऑफ सेशंस फॉर द टीचर्स, देन फॉर द स्टूडेंट्स, देन फॉर द पेरेंट्स एंड ऑल, तो काइंडली गिव मी परमिशन। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो जो बंदा है, जो प्रिंसिपल, वो लेफ्ट की तरफ लिखता हुआ बोलेगा पहले भी बहुत सारे लोग आपके जैसे यहाँ पर आकर गए थे, आपका कार्ड छोड़ कर जाइए, हम आपको फिर कभी बुलाएंगे। और देखो बैठने का स्टाइल देखो किस तरफ जाएगा, पास्ट के तरफ, देखो पीछे से बात करेगा एकदम। हाँ हाँ, अब आपका कार्ड छोड़कर जाइए, लेफ्ट के तरफ, जो लेफ्ट के तरफ लिखते हो बैठते भी चार के ऊपर लेफ्ट के तरफ एकदम लीन करेंगे, ऐसा बादशाहत के जैसा पीछे की तरफ रहेंगे। ठीक है ना। अभी सेकंड वाला जो स्ट्रेट लिखते हैं, द पीपल दोज राइट स्ट्रेट, जो आज में जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग अ प्रिंसिपल हु राइट स्ट्रेट, तो मैं उनसे बोलूंगा माय नेम इज प्रजेश ट्रस्की सर, आई एम इनटू हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस, आई वुड लाइक टू कंडक्ट सेशन फॉर द टीचर्स, देन फॉर द स्टूडेंट्स, देन फॉर द पेरेंट्स एंड दिस एंड दैट। मैं सब बोलता जाऊंगा। तो बोले ठहरो एक मिनट, वन फॉर व्हाट यू आर कम फॉर राइट नाउ। तो मतलब सर आई वांट टू टेक परमिशन टू कंडक्ट अ फ्री सेशन फॉर द टीचर्स। ओके, लेट अस कंडक्ट दैट थिंग फर्स्ट एंड बाकी का सब बाद में बात करेंगे। अभी किस चीज के लिए आए सर? एक परमिशन चाहिए। चलो डेट बताइए, आपका टाइम बताइए, मेरा टाइम बताइए, चलो ठीक है एडजस्ट करते हैं, बाकी का सब देखेंगे, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का रिलेटेड। अभी किस प्रेजेंट, इस वक्त, इस पल क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरे वाले को जब तक मैं फ्यूचर ना बता दूं वो मुझे धंधा नहीं देगा। मैं बोलूंगा कि माय नेम इज प्रजेश ट्रस्की, आई एम इनटू हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस, मैं ये कर सकता सर, वो कर दूंगा, टीचर्स लोग को बताऊंगा, फिर पेरेंट्स को बताऊंगा, फिर बच्चों को बताऊंगा, उनकी हैंडराइटिंग सुधरेगी सर, धीरे धीरे उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, उनके परसेंटेज बढ़ेगा, आपके स्कूल का, कॉलेज का नाम होगा, बहुत एडमिशन आएंगे सर, फिर आप भी ग्रो करोगे। जब तक मैं उसको फ्यूचर बेचूंगा नहीं तब तक वो मुझे ये धंधा नहीं देगा। अगर मैं बोलूंगा सर मुझे ना टीचर्स लोग के लिए एक सेशन लेना है, उसके बाद क्या, उसके बाद पेरेंट्स का ले, उसके बाद क्या फायदा होगा, बच्चों का फायदा, उसके बाद क्या होगा। तो जब तक मैं उनको फ्यूचर ना बता दूं ये मेरे से कनेक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट वन ऑपरेट्स फ्रॉम द पास्ट, सेकेंड ऑपरेट्स इन द प्रेजेंट, एंड द थर्ड इज अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन। नाउ हु इज परफेक्ट? तीनों के तीनों की अपनी पर्सनैलिटी है, सबकी जरूरत है इस दुनिया में। सो ग्राफोलॉजी कभी भी ये सही ये गलत नहीं बताता है, ये बताता है कि इस इंसान के अंदर ये पर्सनालिटी, इस इंसान के अंदर ये पर्सनालिटी, इस इंसान के अंदर ये पर्सनालिटी। एक पास्ट से ऑपरेट करेगा, एक प्रेजेंट में जिएगा, और एक फ्यूचरिस्टिक रहेगा। एक और बात, अगला सवाल मैं पूछता हूं और आप मन में इसका आंसर सोच लेना। कौन सी बंदा इंडिपेंडेंट रहेगा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। अगर आप सोचोगे, यस, सेकंड वाला, सेकंड पर्सन स्ट्रेट लिखता है, तो जो बंदा स्ट्रेट लिखता है वो किसी पे निर्भर नहीं रहता, वो आत्मनिर्भर रहता है। वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज वो खुद पे विश्वास करता है, खुद पे ट्रस्ट करता है, और आज में जीतता है, और खुद पे डिपेंडेंट रहता है, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा कोई भी काम के लिए। अगर समझो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं जो स्ट्रेट लिखते हैं, वो अपने फ्रेंड के घर पे जाएगा और कॉलेज जाने के लिए रुकेगा, उसका फ्रेंड बोलेगा थोड़ा लेट हो गया है, मैं बाद में आता हूँ साथ में, थोड़ा रुक, बोला नहीं 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 मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कॉलेज जाने का है। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट बंदा है। फर्स्ट वाला पास्ट पे डिपेंडेंट रहेगा, और थर्ड वाला फ्यूचर के तरफ डिपेंडेंट रहेगा। वो पास्ट के नॉलेज में, हाँ मैं बताता हूँ आपको, पास्ट का कुछ नॉलेज रहेगा तो वो डिसीजन ले। थर्ड वाला दूसरों पे निर्भर रहेगा, कोई ना कोई दोस्त लोग चाहिए बात करने के लिए, तू बता ना। अभी थर्ड वाले बहुत मिलते हैं यहाँ पर,
स्कूल में, कॉलेज में। मैं बोलता बेटा 10th के बाद क्या करोगे? वो बाजू वाले को पूछेगा क्या कर रहा है? कॉमर्स। मैं भी कॉमर्स करूँगा। बेटा अकाउंट्स बुक लाए हो? तो बाजू वाले को पूछे लाया नहीं। कंपास बॉक्स लाए हो? बाजू वाले को पूछे लाया। पूरा निर्भर है। क्या काय का आत्मनिर्भर, सब कुछ बाजू वाला। बेटा शादी करो, बाजू वाले पूछे करोगे? हाँ चलो तुम बताओ मैं करूँ। मतलब सब निर्भर रहता है। दुकान से एक सामान लाने के लिए भी बाजू वाला चाहिए, दोस्त चाहिए साथ में जाने। एक डिसीजन बेचारा थर्ड वाला नहीं ले पाता बिकॉज वो निर्भर रहता है। अभी आगे सुनो। तो सबसे पहला पास्ट ओरिएंटेड, सेकंड वाला प्रेजेंट ओरिएंटेड, थर्ड वाला फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी इमोशंस के हिसाब से सब लोग ध्यान से सुना, ये सबसे क्रूशियल बात मैं शेयर कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला जो लेफ्ट की तरफ लिखता है, द पर्सन हु राइट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ही विल रिप्रेस द इमोशन। कितना भी उसके अंदर इमोशंस रहेगा वो नहीं बताएगा। इसके लिए वो बचपन से लेफ्ट के तरफ लिखता है। कोई टीचर ने नहीं बोला लेफ्ट के तरफ करना, ये आपकी ब्रेन की पर्सनालिटी है। ये ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि बचपन में जब उसको एक्सप्रेस करना था अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, हो सकता है अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को, किसी ने, कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ तो इंसिडेंट उसके लाइफ में हो गया जिसके बारे में अपने माँ बाप से चर्चा करना चाहता था, अपने टीचर से, हो सकता है पेरेंट्स से, दोस्तों से। कोई सुनने वाला नहीं था, तो तब से उसने अपना रिप्रेस कर दिया उसे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने स्कूल में मार खाया, आज टीचर ने उसको मारा, पनिशमेंट दिया, और उसकी मम्मी को फोन करके बोला आपके बच्चे ने बहुत मस्ती किया, जरा उसको समझाओ। बच्चा घर पे आया, मम्मी ने पूछी व्हाट हैपेंड इन द स्कूल, क्या हुआ स्कूल कॉलेज में, सुना है तूने आज गलती की करे? तो बोले कुछ नहीं हुआ। रिप्रेसेस, कुछ नहीं हुआ। मुझे मालूम है कुछ तो हुआ है स्कूल में, कुछ नहीं बताएगा। रिप्रेसेस द इमोशंस, बताते ही नहीं है बच्चे। काफी पेरेंट्स मेरे पास आते, बोले सर मेरा बेटा बात ही नहीं करता, स्कूल में क्या हुआ वो टीचर बोलती है तब जो कि मुझे मालूम पड़ता है। फिर मैं पेरेंट को बोलता हूँ कभी ना कभी वो आपको बताना चाहता था, शायद आप काम धंधे में और खुद के पैसे कमाने में शायद आप इतने बिजी हो गए टीवी सीरियल्स देखने में कि बच्चे को सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं था, और सुना नहीं उसने, और उसके बाद से उसने रिप्रेस करना चालू कर दिया ये बात। तो फर्स्ट वन विल रिप्रेस द इमोशंस। अभी सेकंड वाला बच्चा है, स्कूल में मार खाया है, उसकी टीचर ने पनिशमेंट दिया, उसकी मम्मी को फोन करके बोला कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया, प्लीज काइंडली टेक केयर ऑफ दिस। बच्चा घर पे आया, मम्मी पूछेगी क्या हो गया बेटा, स्कूल में क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा, आपको मालूम पड़ा क्या? तो सेकंड वाला पूछेंगे तो बताएगा। कितनी देखो पर्सनालिटी, देखो पूछेंगे तो बताएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लिखता है, क्योंकि वो आज में जीता है, इस क्षण में जीता है। जो स्कूल में 11 बजे जो पनिशमेंट मिला, 2 बजे घर पे जाके बता के क्या मतलब है? मम्मी पूछी तो बताएगा। तो सेकंड वाला बहुत ही डिप्लोमेटिक रहता है, वो बहुत दिमाग लगाता है और बोलता है कि नहीं, इफ रिक्वायर्ड देन ओनली आई विल से, बिकॉज ही लिव्स इन द प्रेजेंट। उसको 2 बजे खाना खाने का इंपॉर्टेंट है कि वो 11:30 बजे क्या बात हुई वो इंपॉर्टेंट है। तो ही विल नेवर स्पीक अबाउट 11:30 वाला टाइम, बिकॉज उस टाइम पे उसको उस पल में खाना खाना है। मम्मी पूछेगी तो बताएगा। तो सेकंड वाला विल एक्सप्रेस व्हेन रिक्वायर्ड, और तीसरा वाला मेरे दोस्तों, हाँ, पूछने की जरूरत नहीं है। स्कूल में मार खाया, टीचर ने माँ बाप को बताया भी नहीं, ये घर पे आते साथ ही चालू कर देगा, मम्मी ऐसा हो गया, मैंने नहीं किया था, बाजू वाले लड़के ने मारा था, मैंने उसको फोड़ दिया, उसको बोल दिया, गाली दे दिया, उसने मेरे को गाली दिया, चालू रहेगा पूरा। उसको माँ बाप को बोलना पड़ता है चुप बैठ, कितना बात करता है, तुम्हें पूछी तुझे से ये सब बातें। अब माँ बाप इसको बोलते फिंगर ऑन योर लिप्स। इसका जो पोटेंशियल है बातचीत करने का, लोगों के बीच में रहने का, इसके अंदर जो काबिलियत है बड़बड़ करने का, उसको हम चुप करा देते हैं। ये तीसरा वाला बहुत एक्सप्रेस करता है। और मेरे दोस्तों, ये तीसरा वाला सेल्स में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, दोस्तों के बीच में, जहां पे भी मैनेजमेंट, लोग और लोग से कनेक्टेड बातें करवानी है, ये तीसरे वाले को पकड़ के डाल देना, वो सबसे आगे रहेगा। बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर इन मास मीडिया, ऐसे सब वो प्रोफेशन में जहाँ पे उनको लोग और लोगों से बातचीत करना पसंद है, वहां पर इनका करियर बन जाएगा। और सेल्स में तो बहुत आगे है, बिंदास जाके बेच कर आ जाएगा। और कुछ लोग जो सेकंड वाले, जहां जरूरत है वहीं बेच के दिखाएंगे, और पहले वाले तो सेल्स वेल्स की जरा भी एक्सपर्ट नहीं रहते। बट पहला वाला
ये बड़े बड़े कंपनियों के बॉस बनते हैं, ट्रस्टीज बनते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हेड बन जाते हैं, बिकॉज वो इमोशंस को लेकर नहीं आते, उनको काम से मतलब है। पहला वाले में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, वर्क इज वर्शिप, नो इमोशंस नथिंग, वर्क वर्क एंड वर्क। सो फर्स्ट वाला हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, सेकंड वाले बैकबोन बनेंगे, जो आज में जीते हैं, जो स्ट्रेट लिखते हैं, जो आज में जीते हैं, वो बैकबोन बनेंगे इंस्टीट्यूट्स के। कोई भी जगह पे 30-30 साल 40-40 साल तक ये सेकंड वाले काम करते हैं और पूरा काम आज का कंप्लीट करके आज में देते हैं। और तीसरे वाले सेल्स, मार्केटिंग, पीपल कनेक्ट, हर वो जगह जहाँ पे लोग और लोगों से कनेक्टेड रहने की क्षमता है, वहाँ पे तीसरे वाले बनते हैं। और अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारा तीनों भी है, जो लेफ्ट के तरफ स्ट्रेट आगे के तरफ लिखता है, जो भी बच्चे लोग की हैंडराइटिंग तीनों दिशा में जाती है, वो एक नंबर के एक्सेलेंट एक्टर्स बन सकते हैं। तीनों दिशा में जिसकी हैंडराइटिंग जाती है वो एक नंबर के एक्टर बनते हैं, क्योंकि सब इमोशंस उनको आता है। लेफ्ट की तरफ स्ट्रेट आगे की तरफ बहुत बात करना, जितनी जरूरत है उतना बात करना, और जरा भी बात नहीं करना। तो इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे, जिनको सब दिशा में लिखने को आता है। वो बच्चे सब दिशा से सोच सकते हैं, पढ़ाई में इतने खास नहीं रहेंगे, लेकिन दुनिया भर की एक्टिविटीज में एक्सप्रेस करने से लेकर ये चीज, लेकिन उतना ही डिस्टर्ब्ड माइंड हो सकता है उन लोगों का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, परेश रावल, ये सब लोग मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स थे। यानी कि एक पर्टिकुलर विलन का रोल नहीं करते, कॉमेडी का रोल भी करते हैं, सपोर्टिंग रोल भी करते हैं, जो भी रोल उनको दे देना उनको जमता है, लेकिन उतना ही उनका लाइफ डिस्टर्ब रहता है। जिनका भी हैंडराइटिंग सब दिशा में जाएगा, उनका माइंड डिस्टर्ब रहेगा बहुत, तो उनको हमेशा एक टीचर, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, जिनके बारे हमेशा चरणों में जाके बैठने का, सर मुझे दिशा दिखाइए, ये बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो तीनों दिशा में लिखने वाले लोग को काउंसलिंग लगती है, सपोर्ट लगता है, वरना एक्सेलेंट एक्टर्स बन जाते हैं और हर जगह उनका मूड शिफ्ट होता रहता है, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो फर्स्ट वाले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, सेकंड वाले बैकबोन, और तीसरे वाले सेल्स, मार्केटिंग, और हर वो जगह जहां पर लोगों के साथ कनेक्ट करने मिले। तो इसमें आपके हैंडराइटिंग में अगर फर्स्ट वाला है, किसी के हैंडराइटिंग में अगर फर्स्ट वाला है और एक्सट्रीम लेफ्ट, जरूरत से ज्यादा लेफ्ट के तरफ जा रहा है, तो मेरे तरफ से उनको फ्री काउंसलिंग मिलेगी। फ्री काउंसलिंग हमारी टीम उन बच्चों को करेगी, ठीक है ना, जिनका एक्सट्रीम लेफ्ट, क्योंकि कुछ तो बचपन में प्रॉब्लम हुआ है जो आपके मन में घर कर गया है, जिसके वजह से आप एक्सट्रीम लेफ्ट के तरफ लिख रहे हैं। वो जब तक अगर आपके लाइफ से निकलेगा नहीं, आप सीधे नहीं हो पाओगे और आपका लाइफ सुधरेगा नहीं, बिकॉज बार बार पास्ट की चीजें वो आपको इतना तकलीफ देगी कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंड ऑफ द सेशन में हम हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे, फ्री में काउंसलिंग होगी जिसका एक्सट्रीम लेफ्ट के तरफ है। एक पार्ट हो गया। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सिंस वी ऑल आर स्टूडेंट्स हियर, मुझे बोला गया था कि सब कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो मैं स्टूडेंट्स से पर्सपेक्टिव हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और ये सबके लिए ट्रू है। जो भी मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए ट्रू है। सिंस वी आर किड्स हियर, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आई और जे। आई और जे के ऊपर हमेशा डॉट होना चाहिए, सब लोग ध्यान से देखना। आई और जे यू शुड हैव डॉट्स। ये डॉट्स किधर गिरने चाहिए? एग्जैक्टली आई और जे के ऊपर गिरना चाहिए। डॉट आई और जे के एग्जैक्ट ऊपर गिरना चाहिए। जो भी बच्चों का आई और जे का डॉट बराबर आई और जे के ऊपर गिरता है, उनका फोकस सबसे पावरफुल होता है। वेरी गुड फोकस एंड अवेयरनेस, वेरी गुड कॉन्सेंट्रेशन। अर्जुन को हरे कलर के पेड़ के बीच में, हरे कलर के पत्तों के बीच में, हरे कलर के तोते का आंख दिखता था। अपने को तो पूरा पेड़ दिखता है, तोते का आंख तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे बराबर आई और जे के ऊपर डॉट गिरना चाहिए, का फोकस बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। अभी आपके मन में आता रहेगा मैं तो सर्कल डालती हूँ सर, मैं डॉट नहीं डालती, मैं सर्कल और डॉट दोनों मिक्स करती हूँ, मैं आऊंगा उसके ऊपर, टेंशन मत लो। लेकिन डॉट या सर्कल एग्जैक्टली आई और जे के ऊपर गिरना चाहिए। अगर नहीं गिरता है यानी कि फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। जो भी यानी कि अभी समझो आपके मन में शक होता रहे, सर क्या मैं प्रैक्टिस करके ध्यान से अगर मैंने आई और जे पे डॉट डालना शुरू किया तो क्या मेरा फोकस बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा।
क्या करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को एंड में, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो क्या सेंटेंसेस लिखने चाहिए, कैसा ही आई और जे के डॉट्स बदलने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। वेरी गुड फोकस एंड कंसंट्रेशन, एकदम फोकस और कंसंट्रेशन एकदम शार्प रहेगा। अभी आपको ऐसा मन में आएगा सर मेरा जो आई और जे का डॉट है ना सर कभी कभी पीछे गिरता है। सर्टन पीपल विल पुट द डॉट बिहाइंड, सर्टन पीपल विल पुट द डॉट वेरी हाई इन द स्काई, आसमान में डालते हैं। कुछ लोग डॉट बहुत आगे डालते हैं, गिर डालते नहीं हो गिर जाता है, वो डालता कोई नहीं हो गिर जाता है, सब कॉन्शियस है पूरा का पूरा। एंड सर्टन पीपल विल फॉरगेट टू पुट द डॉट, डॉट डालना भूल जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, जो भी पीछे की तरफ है वो पास्ट होता है, जो भी आगे की तरफ है वो फ्यूचर होता है, जो स्ट्रेट होता है वो प्रेजेंट होता है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो जो भी पीछे डालते हैं डॉट, जिन बच्चों का जिन लोगों का डॉट पीछे गिरता है, दे आर बिहाइंड रियलिटी। बिहाइंड रियलिटी का मतलब हकीकत से दूर भागते हैं, उसको कहते हैं प्लेन प्रोकास्टिनेटर। प्लेन प्रोकास्टिनेटर का मतलब होता है पोस्टपोंडिंग मेंटालिटी, चीजें डिले करना। आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। आराम से, अगर समझो कॉलेज में प्रोजेक्ट 15 तारीख को सबमिट करना है तो 15 तारीख को तो ये पहले जमा करना स्टार्ट करता है, फिर 20 तारीख को 25 तारीख को पोस्टपोंडिंग मेंटालिटी, होमवर्क्स डिले करना, टीचर्स जो बोलेंगे उसको बाद में देना। ये पोस्टपोंडिंग मेंटालिटी करते 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 वो हकीकत को फेस नहीं करता है। इधर बैठे हुए बच्चों लोग को ये एक्सपीरियंस मैं पूछना चाहता हूँ। जिस दिन आपने होमवर्क किया उस दिन आप क्लास में कैसा बोलते हो, टीचर टीचर चेक द होमवर्क। और जिसने होमवर्क नहीं किया, अरे चुप बैठना, रहने देना, अरे क्यों क्यों फंसा रहा हम लोगों को। तो रियलिटी को फेस नहीं करते करते नहीं करते करते नहीं करते करते नहीं करते करते आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है, फिर बाद में जॉब पे भी सेम आदतें हो जाती है। जॉब पे भी स्कूल के कॉलेजेस के टीचर्स प्रोजेक्ट वर्क या होमवर्क क्यों देते हैं, रोज का काम रोज कंप्लीट होने की आदत तेरे अंदर आनी चाहिए, इसके लिए तुझे ये देते हैं। कोई दुश्मनी नहीं है कि टीचर्स जब छोटे थे उनके टीचर्स ने उनको बहुत सारा होमवर्क दिया था, तो बड़े होने के बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था, सब बच्चे यहाँ पर बैठे ध्यान से सुनना। हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, सभी बच्चों को असाइनमेंट दिया था वेडनेसडे के दिन, और कहा था कि मंडे को आप लोग को सबमिट करना है और लेट सबमिशन सैटरडे तक कर सकते हैं। मंडे को मेन डे ऑफ सबमिशन है, लेट टू लेट सबमिशन सैटरडे इवनिंग तक आप कर सकते हैं। कई सारे बच्चों ने मंडे को सबमिट किया, कुछ लोगों ने ट्यूसडे को किया, ऐसा करते करते कुछ लोगों ने सैटरडे को किया। और इन सब लोगों का एग्जाम लिया गया, टेस्ट लिया गया, असेसमेंट लिया गया। दे वर शॉक्ड टू नो कि जो सैटरडे को जिसने सबमिट किया उसका परफॉर्मेंस सबसे खराब था, और जिसने मंडे को सबमिट किया उसका परफॉर्मेंस सबसे, बिकॉज वो रियलिटी को फेस करते हैं। तो जिनके डॉट स्पीच, प्लेन प्रोकास्टिनेटर यानी कि जॉब पे लेट पहुंचना, कोई भी काम टाइम पे नहीं दे पाना, यही आदतें कॉलेज की आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद ऑफिस में भी यही कंटिन्यू होते जाएगी। फिर उधर पे रोज गाली खाना, जैसे स्कूल में गाली खाते थे, कॉलेज में गाली खाते थे, ये समझ लेना। पीछे डॉट डालना, जो आसमान में ऊपर डॉट डालते हैं, हवा में अनरियलिस्टिक बातें करते हैं। कुछ बच्चे होते ना, सर माँ कसम सर मैं आज से पढ़ाई करना शुरू करूंगा, ये माँ का कसम कभी टूटता नहीं ना, पढ़ाई शुरू होती, बातें बड़ी बड़ी हो जाती, अनरियलिस्टिक बात है। मैं तो लोगों के बातचीत करने से पता लगा देता हूँ कि ये भाई साहब किस हद तक काम करेगा, अनरियलिस्टिक। और जो आगे की तरफ डालते हैं वो बहुत ही अहेड ऑफ रियलिटी रहते हैं, अभी बैठकर आगे की तरफ, अभी बैठकर आगे की तरफ। यानी कि अगर अभी बैठा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ कि बेटा ये अपने को करना, इतने में आगे तक पहुंच गया, बहुत आगे तक निकल गया। तो इनको थोड़ा सा एंगर रहेगा, जिसके डॉट बहुत आगे गिरते हैं, इनका इम्पेशंस लेवल बहुत हाई रहता है, प्रोसेसर दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन हाथ या मन ये कम स्लो चलता है, जिसके वजह से गुस्सा और टेम्पर हमेशा रहेगा और आज पे फोकस नहीं रहेगा। और जो लोग मेरे दोस्तों डॉट डालने को भूल जाते हैं, इनको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। 21st सेंचुरी में
70 से 80, 60 से 70% बच्चों लोग के हैंडराइटिंग में आई और जे के डॉट्स नहीं रहते। एब्सेंट माइंडेड, नोटबुक भूल जाना, अकाउंट्स का बुक भूलना, कंपास बॉक्स भूलना, स्केल भूलना, हॉल टिकट भूलना, सब भूल जाना, बाद में खुद को ही भूल जाना एक दिन। यही बच्चे बड़े होने के बाद लैपटॉप भूल जाते हैं, वॉलेट भूल जाते हैं, मोबाइल फोन रिक्शा में भूल जाते हैं, काम की चीजें भूल जाते हैं, फाइल रिक्शे में छोड़कर आ जाते हैं, कहाँ रखा है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये एब्सेंट माइंडेडनेस, वीकनेस, शारीरिक वीकनेस जिसके अंदर है वो भी डॉट डालना भूल जाता है। एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, चीजें भूलने की आदत। क्लासरूम में पूछो ना, कंपास बॉक्स लाए हो, बाजू वाले को पूछेगा लाए हो। भूलने की आदत, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का हैंडराइटिंग में आई और जे के ऊपर डॉट के जगह पे सर्कल्स होते हैं। दोस्तों जो लोग सर्कल्स डालते हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पे सर्कल वाले भी रहेंगे, ठीक है ना। जो लोग सर्कल्स डालते हैं ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। दे आर अटेंशन सीकर्स, यानी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वो कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे जो भी बच्चे सर्कल्स डालते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस में, ड्रामा में, सिंगिंग में, ये सब जगह बच्चे बहुत आगे रहते हैं। एकेडमिक में इतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा, उनको क्या चाहिए, लोग मुझे देखे, लोग मुझे पहचाने, दैट्स इट। दैट इज देयर अटेंशन सीकिंग मेंटालिटी। मैक्सिमम फीमेल्स जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा सर्कल्स डालती है। मेल लोग में भी होता है, लेकिन फीमेल लोग सबसे ज्यादा सर्कल्स डालते हैं, मेल लोग कम सर्कल्स डालते हैं। तो ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। तो जो भी सर्कल डालने वाले बच्चे हैं हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, ताकि वो लोगों का ध्यान को आकर्षित कर सके। तो जो सिंगिंग में रहते हैं, कोई डांसिंग में रहता है, कोई पेंटिंग में होता है, कोई एक्टर बनता है, कोई अच्छा कोई ना कोई ऐसी चीजों में जहाँ पे वो लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सके। ये सर्कल डालने वाले बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, दिल भी डालते हैं। सर्टन पीपल विल पुट हार्ट ऑल्सो, ठीक है ना। तो जो भी हार्ट डालते हैं, लव इज इन दी एयर, यानी कि काहीतरी चाललाय, गड़बड़ चालू है यहाँ पर, और द पर्सन इज आस्किंग फॉर लव, यानी कि वो इंसान प्यार मांग रहा है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है और वो प्यार मांग रहा है। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। तो द पर्सन इज आस्किंग फॉर लव। ये पर्सनालिटीज है, हम पकड़ लेते हैं हैंडराइटिंग से कि कौन किधर क्या फंसा हुआ है, कहाँ अटका हुआ है। रियल पर्सनालिटी पता चल जाती है। आप दुनिया को बोलकर दिखाकर कुछ भी बता दो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग में सब चीज पता चल जाता है मेरे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आई और जे कैसा लिखना चाहिए। सो व्हाट वी एडवाइस, यहाँ पर सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। सो व्हाट वी एडवाइस, तो आई और जे पे डॉट्स कहाँ गिरने चाहिए, एग्जैक्टली अबव आई एंड जे। आई और जे पे सर्कल्स भी चलेंगे, सर्कल्स भी चलेंगे। सो डॉट विल ऑल्सो वर्क, circle will also work. Dot and circle, whatever you are putting, it should fall exactly above I and J. ना पीछे गिरना चाहिए, ना आगे गिरना चाहिए, ना आसमान में गिरना चाहिए, या फिर ना नहीं गिरना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, डॉट भी चलेगा, सर्कल भी चलेगा। जिसको एकेडमिकली आगे ग्रो करना है, पीएचडी तक करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, ऐसे सब जगह जाना है पढ़ाई करके, आईएएस, आईपीएस, तो डॉट्स। जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ना है, सर्कल्स, या बीएमएम, बीएमएस, मास मीडिया, ये सब जगह पे जहाँ पे लोगों के साथ रहकर आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो सर्कल्स वाले। तो डॉट भी चलेगा, सर्कल भी चलेगा। इतना है कि आई और जे पे एग्जैक्टली आई और जे के ऊपर गिरना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये समझ लेना सब लोग। तो एक चीज, दो चीज मैंने आपको बता दिया, स्लांट के बारे में बता दिया और आई और जे पे डॉट के बारे में बता। तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल आई। सब लोगों ने लिखा रहेगा, मैंने कहा था ना, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक, आप सब लोगों ने आई लाइक के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है। तो मैं आपको एक और बार बता दूं, एक कैपिटल आई में दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है, सॉरी। द कैपिटल आई हैज थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन आई। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन आई। मतलब क्या, यानी कि मैं। इसमें तीन हिस्से होते हैं। इसमें अपर क्रॉस बार होता है, लोअर क्रॉस बार होता है और मिडिल स्टेम होता है। फिर से दिखा देता हूं। तो देयर आर थ्री पार्ट्स, द मिडिल स्टेम, द upper crossbar
एंड द लोअर क्रॉस बार, ठीक है ना। तो मिडिल स्टेम इज सेल्फ, ये आप हो। मिडिल स्टेम का मतलब ये आप हो। अपर क्रॉस बार आपका मदर के साथ रिलेशनशिप, लोअर क्रॉस बार आपका फादर के साथ रिलेशनशिप, और तीनों मिलकर आप बनते हो। सो दिस इज व्हाट इज आई। गड़बड़ कहाँ होता है, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने बताया ना, कुछ नेगेटिव चीजें बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव चीजें बताऊंगा, परफेक्ट आई कैसा लिखना वो भी बताऊंगा। तो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने क्या दिखता रहेगा, ये जो स्टेम है मदर का और फादर का, ये टच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट टचिंग। सो द क्रॉस बार्स नॉट टचिंग द स्टेम। तो यहाँ पे क्रॉस बार स्टेम को टच नहीं हो रहा है, यानी कि इमोशनली डिटैच विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं है, बराबर से रिश्ता नहीं, बस मौका ही ढूंढ रहा है बड़े हो जाओ और निकल जाओ घर छोड़कर। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, अलग से रहते हैं। शादी भी करेंगे तो माँ बाप अलग, ये अलग, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। गलती बच्चे की नहीं, गलती पेरेंट्स की नहीं। ये होता क्या है, सब अनजाने में आज की जिंदगी में 21वीं शताब्दी में सब लोग ऐसा भाग रहे हैं कि कहाँ भाग रहे किसी को कुछ मालूम नहीं। सबको सक्सेस पाना, घर गाड़ी बंगला पैसे बैंक बैलेंस, उधर पे प्रॉपर्टी सब होना चाहिए। तो ये भागम भागी में कहीं ना कहीं रिश्ते भूल जाते हैं। तो कोरोना ने सबको घर पे बिठा दिया, रिश्तों की कीमत बता दी। करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी तुम जिंदा रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे पहचान में एक 100 करोड़ का आदमी था, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 25 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी जिंदगी नहीं बच पाई। तो कहाँ भाग रहे हैं, रिलेशनशिप घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो अगर बच्चे यहाँ पे सोचते रहेंगे कि मेरा मम्मी डैडी के साथ जमता नहीं है लेकिन मैं बाहर जाकर मैं शादी करूंगा और मैं अपने घर, ऐसा नहीं होगा। माँ बाप के साथ एनर्जी सही नहीं है तो आने वाला जो जनरेशन है कि तुम्हारा मम्मी के साथ नहीं जमता तो तुम्हारा 200% वाइफ के साथ नहीं जमेगा, 200% है। तुम्हारा डैडी के साथ नहीं जमता, अगर लड़की है तो तुम्हारा हस्बैंड के साथ नहीं जमेगा, ये 200% है। यहाँ पे रिलेशन ठीक नहीं है तो वहां पे भी रिलेशन ठीक नहीं होगा, बिकॉज यही एनर्जी उधर पे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमको ये रिलेशनशिप सुधारने हैं। किसी की भी गलती ना तुम्हारी गलती ना उनकी गलती है, समाज की गलती है। जिस तरीके से समाज का अपब्रिंगिंग हो रहा है, जो भी तरीके से क्या सही है उसको कम दिखाया जाता है और क्या गलत है वो सबसे ज्यादा हमको दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये गलत आई है। दूसरा आई, दोनों के दोनों क्रॉस बार टच होते हैं, अपर क्रॉस बार एंड लोअर क्रॉस बार। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आर पार गया हुआ, इट इज गोइंग अक्रॉस, तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा प्यार है। सो क्रॉस बार कटिंग द स्टेम, तो इसको कहते हैं इमोशनली अटैच्ड बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद बोथ द पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जरा भी ओपिनियन का मैच नहीं होता। पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, तुम कुछ और करोगे, तुमको और चाहिए, वो कुछ और बोलेंगे और इतना, लेकिन एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। अटैचमेंट जबरदस्त है लेकिन एक दूसरे का जो लिमिट है वो क्रॉस कर दिया है, रेस्पेक्ट दोनों का खत्म हो गया है। तो हमेशा पेरेंट और बच्चे के बीच में, टीचर और बच्चे के बीच में एक लिमिट, एक छोटा सा दायरा होना चाहिए। तो जब भी दायरे क्रॉस हो जाते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। माई वॉइस इज नॉट कमिंग, am I audible? Yes, sir. हाँ, तो someone was saying it, voice is not coming, ठीक है। You have to log in once again, try बेटा, फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। फाइन। सो जब भी हम, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने दूर मत जाओ कि एक दूसरे से हाथ ना मिला सकते। तो पहला वाला केस है कि माँ बाप और बच्चे के में दूरियां बहुत हैं, और इतने भी नजदीक मत जाओ कि एक दूसरे को पहचान ही ना सके। तो कभी कभी जब दायरे क्रॉस हो जाते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाती है। काफी टीचर्स बच्चे में दायरे नहीं रहते, जिसकी वजह से एक दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं होता। माँ बाप और बच्चे के बीच में हल्के से दायरा नहीं होने की वजह से बच्चा माँ का बाप का नहीं सुनता, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते,
और ये साथ में रहते हैं, बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी घर में होती है। तुम जो चाहते हो वो नहीं सुनेगा, वो जो चाहता है तुमको सुनना नहीं है, और बस ये झगड़े चलते रहते हैं। सेकेंड वाला। ना तीसरा वाला तो बहुत ही चैलेंजिंग है। ये अगर आपके हैंडराइटिंग में, किसी कोई भी बच्चे के हैंडराइटिंग में अगर ये वाला है, फिर से हमारे तरफ से फ्री काउंसलिंग होगी, ठीक है ना? यस। सो ये इसको क्लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉ। इसमें क्या होता है, इसको कर्सिव आई कहते हैं। क्लॉ इन द लोअर पार्ट, यानी कि निचले हिस्से में क्लॉ है। क्लॉ का मतलब एक स्पेशल शेप है, जो कॉल्ड एज अ क्लॉ विच गोज ऑन टू द लेफ्ट साइड। इसको क्लॉ कहते हैं। तो ये चीटिंग मेंटालिटी होती है, दिस कॉल्ड एज अ चीटिंग माइंडसेट। जिनके भी हैंडराइटिंग में अगर है, डोंट फील बैड अबाउट इट, बुरा मत मानिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सिर्फ, अगर आपके हैंडराइटिंग में है तो सिर्फ, और ये डैड के तरफ है, मतलब ये मम्मी के यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको कर्सिव आई कहते हैं। कुछ लोग कर्सिव आई लिखते हैं ना, वो बच्चे लोग की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग कर्सिव आई नहीं लिखते हैं, तो नॉर्मल लिखते हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कुछ चीजें। सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये कर्सिव आई जब हम लिखते हैं तो ये नॉर्मल आई है। ये जब हम लिखते हैं ये नॉर्मल आई है, ठीक है ना? ये चल जाएगा। इसमें मम्मी के साथ रिलेशनशिप ज्यादा है, डैडी के साथ रिलेशनशिप थोड़ा कम है, लेकिन दोनों के साथ अटैचमेंट है। लेकिन मम्मी के साथ रिश्ते स्ट्रांग है, डैडी के साथ रिश्ते थोड़े कम। तो ये फिर भी ठीक है। कुछ लोग दोनों में भी लूप डालते हैं, तो ये चलेगा कि मम्मी के साथ भी अच्छा रिश्ता है, डैडी के साथ भी अच्छा रिश्ता है। गड़बड़ कहाँ होता है? गड़बड़ कहाँ होता है? गड़बड़ जब होता है कि ये जब फॉर्म होने के बाद ये ऐसा क्लॉ फॉर्म करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज अ चीटिंग मेंटालिटी। इसको चीट कहना, यानी कि विश्वास जीतना और चीट करना, और डैडी की तरफ है। तो डैडी का जो बिहेवियर घर पे है, वो घर में ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब सबके साथ चीट करते, विश्वास जीतते हैं माँ बाप का या घर में बच्चों का, और फिर चीट करते हैं। और ये पर्सनालिटी फिर बच्चों के अंदर आना स्टार्ट होती है। कुछ साल पहले 2016 में मेरे पास 180 हैंडराइटिंग में से 78 हैंडराइटिंग में ये क्लॉ था। उसमें से 74 गर्ल्स लोग के हैंडराइटिंग में ये क्लॉ आया था। तो आप समझ लेना इसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ते जा रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही चीज़ है मेरे दोस्तों, जो हम रोज़ भर टीवी में, नेटफ्लिक्स में, फेसबुक के ज़रिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो देखते हैं, चीटिंग करने की जो मेंटालिटी बार बार देखते हैं। आप कुछ भी देख लेना, टीवी चालू करो, बिग बॉस चालू करो, क्राइम पेट्रोल चालू करो, आप कोई भी सीरियल्स चालू करो, जितने भी ये सब चीज़ें करते रहेंगे, ये सब जगह पे ये नेगेटिव एनर्जीज रहती है, जिसके वजह से ये आई का क्लॉ आ जाता है। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइप, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको स्लाइड पे फिर से लेके जाऊंगा, हाउ टू राइट प्रॉपर आई, ठीक है ना? तो प्रॉपर आई कैसा लिखना है? ये तीनों गलत आए हैं, ये तीनों गलत आए हैं। तो हाउ टू राइट है प्रॉपर आई? प्रॉपर आई सिंपल है। आप, आपका स्टेम लिखना, ऊपर का क्रॉस बार और नीचे का क्रॉस बार जस्ट टच होना चाहिए। दिस इज दी परफेक्ट आई। बाकी सब आई में कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी। कर्सिव आई लिखते हो तो मैंने बता दिया, दोनों में लूप डाल देना, जिसमें आपका डैडी के साथ, मम्मी के साथ भी अच्छे रिश्ते रहेंगे। नहीं तो दिस इज दी आई व्हाट वी एडवाइज। इसमें सेल्फ का स्टेम परफेक्ट है, अपर क्रॉस बार मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा, लोअर क्रॉस बार में फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा। तो दिस इज व्हाट इज अ परफेक्ट आई। ये आप सुधार लेना। ये तीसरी चीज मैंने आपको बता दी। कैसा प्रैक्टिस करना है वो भी एंड में मैं बताऊंगा। क्या लिख के प्रैक्टिस करना है वो भी मैं एंड में बताऊंगा। गोइंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम जोन्स कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा किसी की भी जब काउंसलिंग करता हूं तो सबसे पहले उन लोगों के जोन्स को बदलता हूं। जोन्स अगर बदल गए तो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जोन के साथ टी, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। तो जोन क्या होता है? यस, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हम सब लोगों ने बचपन में रेड एंड ब्लू लाइन में लिखा है ना? हम सब लोगों ने बचपन में रेड एंड ब्लू लाइन में लिखा है। रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये बचपन में ABCD जब लिखते थे तो रेड एंड ब्लू लाइन में ही हम लोग लिखते थे। इसका मतलब क्या? अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड हैंड लिखा है, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूँ। ये अगर आपने
आपके हैंडराइटिंग में इसको बदल दिया, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये हैंड वर्ड जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एच और डी अपर जोन में, यानी कि उसका कुछ हिस्सा अपर जोन में आता है, कुछ हिस्सा मिडिल जोन में आता है, और यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में कुछ नहीं है। देयर आर 3 जोन्स। जब भी हम रेड एंड ब्लू लाइन में लिखते हैं तो 3 जोन होते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। ये 3 जोन में हैंडराइटिंग स्प्रेड होता है। कोई भी अल्फाबेट अपर और मिडिल में रहेगा, कोई भी अल्फाबेट मिडिल और लोअर में रहेगा, कुछ लोग मिडिल में ही रहेंगे। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एच और डी का स्टेम रेड लाइन तक टच नहीं हो रहा। ध्यान से देख लो, एच एंड डी का स्टेम इट इज नॉट टचिंग दी रेड लाइन। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, 80% बच्चे आज की तारीख में ऐसा ही लिखते हैं। नाउ दिस इज नथिंग एल्स बट यू। ये जो जोन है इसका मतलब ये आप हो। मतलब क्या है, तो अपर जोन इज कॉल्ड एज द इंटेलेक्ट। ये देखो इधर का खोपड़ी, इंटेलेक्ट, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे पावरफुल चीज ऊपर वाले ने हमको इंटेलेक्ट दी है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे अंदर है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन की कैपेसिटी 52 जीबी ऐसा एक जगह पढ़ा था। अब मैं एक और जगह पढ़ा तो उधर पे तो 82 जीबी की चर्चा कर रहे हैं। मतलब एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 52 नहीं तो 82 जीबी है। यह है इंटेलेक्ट जो ऊपर वाले ने हमको दिया है। इसको छोड़कर, इस इंटेलेक्ट को पॉलिश करने के जगह पे बाकी सब चीजों को पॉलिश करेंगे। चेहरे को पॉलिश करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, लेकिन खोपड़ी को पॉलिश नहीं करेंगे। इंटेलेक्ट, तो अपर जोन इज द इंटेलेक्ट, मिडिल जोन इज हार्ट एंड स्टमक, दिल और पेट, एंड लोअर जोन इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें आपका पैर, सेक्स ऑर्गन से लेके सब चीजें लोअर जोन में आ जाती है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। थोड़ा ध्यान से अगर इस हैंडराइटिंग को देखेंगे, ये हैंड वर्ड को देखेंगे, इसका मिडिल का पार्ट बड़ा है, अपर जोन के स्टेम्स कम हैं। अपर जोन स्टेम्स आर वेरी लेस, है ना। तो अपर जोन कम होने की वजह से ये जो बंदा जो ऐसा लिखता है, देखो ये ऐसा लिखता है, ध्यान से देखो, टी और एच के स्टेम बराबर नहीं है। तो जिनके स्टेम्स कम है, यानी कि इंटेलेक्ट को इस्तेमाल नहीं करता, ये मिडिल जोन में सबसे ज्यादा जीता है। मिडिल जोन, हार्ट एंड स्टमक। दिल ने कहा चाइनीज वेल, दिल ने कहा पबजी, दिल ने कहा मूवी, दिल ने कहा कैसा मैं दिखता हूँ, कैसा मैं दिखती हूँ। आजकल के बच्चे 10 में से 8 लोग आईने के सामने खड़े रह के कबर्ड में जो है वार्डरोब में एक ही चीज सोचते रहते हैं कि आज कौन सी कपड़ा पहनूं, मेरा जीन्स क्या होना चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, है ना, कौन बोला, किधर बोला, मेरे बारे में बोला, ऐसे कैसा बोला, क्यों बोला, काहे के लिए बोला, कभी बोला, कभी बोला, तभी बोला, इसने बोला, कैसा बोला। ये जितना भी बोला बोला है, ये इबोला वायरस से भी खतरनाक है और अपना ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। क्या बोला, किधर बोला, अरे कुछ नहीं बोला, पढ़ाई के बारे में बोला मैंने। कितना ला रहा है टीवाई में, कितना ला रहा है एसवाई में, अपने आप के अंदर क्या स्किल इंप्रूवमेंट कर रहा है भाई। बाय द टाइम तू ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तेरा इंग्लिश कितना स्ट्रांग रहेगा मुझे बता। मार्केट में स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। क्या तू कर रहा है, पबजी खेल रहा है 6-6 घंटा बैठकर मोबाइल फोन में पड़े हुए, सुबह से ले शाम तक सेल्फी खींचते रहते, इंस्टाग्राम में अपलोड करते रहते। ये सब मिडिल जोन एक्टिविटीज, ये सब के सब मिडिल जोन। कैसा मैं दिखती हूँ, कैसा मैं दिखता हूँ, ये सब इंटेलेक्ट बोलता है बेटा पढ़ाई कर। भले लॉकडाउन है, कॉलेज खुला नहीं खुला, एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, अपने दिमाग को शार्प करना है और मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान बनना है। लेकिन करेगा कौन? हाँ, बुक खोलते साथ ही ओपन इज द बुक, क्लोज इज द माइंड। फिर हम लोग बोलेंगे क्लोज द बुक, यस सर, ओपन इज द माइंड। किताबें बंद करने बोलेंगे तो यस सर मैं करके दिखाऊं। इसके ये होता है मिडिल जोन एक्टिविटी। इसका रीजन बता दूं आप लोगों को, सब लोग ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। 21वीं शताब्दी में मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि वी हैव बीन बम्बार्डेड, सुबह से लेकर शाम तक, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब के जरिए वी हैव बीन बम्बार्डेड विथ इमोशनल डेटास, अनफिल्टर्ड इमोशनल डेटा, जिसकी कोई फिल्टरिंग नहीं होती है। सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी लस्सी थी, कुसुम कुटुम, कोई है, फिर कोई है, बिग बॉस देख रहे, दिया जला रहे, बत्ती जला रहे, क्राइम पेट्रोल देखते हैं। ये सब चीज़ अगर देखते बैठोगे तो तुम्हारा इंटेलेक्ट की धज्जियां उड़ जाएगी।
और आपका इंटेलेक्ट नहीं चलेगा, मिडिल एंड ना मिडिल जोन, हार्ट एंड स्टमक, यही चीज चलता रहेगा, बम्बार्ड में। और सबसे ज्यादा डेंजरस, इधर बैठे हुए सभी लोग, आज के लेक्चर से कुछ मत लेके जाना, ये चीज लेके जाना, खाना खाते हुए टीवी देखना सबसे डेंजरस। खाना खाते हुए टीवी देखना सबसे डेंजरस। दुनिया में मेरे दोस्तों जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारी का नाम होता है साइकोसोमैटिक डिसीजेस। कोई भी डॉक्टर्स को पूछ लेना कि साइकोसोमैटिक डिसीजेस क्या होते हैं। 95% डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ साइकोसोमैटिक। साइको मतलब विचार, सोमा मतलब शरीर, और बीमार का मतलब बीमारी का मतलब बीमारी। लुइस है ने किताब लिखी है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक किताब दिख रहा है, यू कैन हील योर लाइफ करके किताब लिखी गई है। इसके अंदर कौन सी बीमारी कौन सी विचारों से आती है उसके बारे में लिखा है इसके अंदर। जबरदस्त किताब है, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा तो इसमें पढ़ लेना। मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी टीवी देख रहे हो, क्राइम पेट्रोल का सीन चल रहा है, वहां पे मर्डर का सीन चल रहा है। आपको क्या अच्छा लगता है मर्डर सीन देख के? अरे यार बराबर नहीं काटा, थोड़ा लेफ्ट से काटता थोड़ा और मजा आता था, ऐसा थोड़ी है। आपको एक अजीब सी फीलिंग आपके चेस्ट में रहेगी उसी टाइम पे आप दाल चावल खाते हो, जो भी खाना खाते हो, तो इस फीलिंग के साथ ये खाना आपके शरीर में आ जाता है, और बस यहाँ से ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंस लाइफ में चालू हो जाता है। आज के सेशन से आप कुछ लेके जाओ या मत जाओ, एक चीज मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखेंगे। 10 से 15 मिनट लगता है खाना खाने को, वो खाने को एंजॉय करो, वो शरीर पे लगेगा, नहीं तो सब के सब बीमारियां लेके बैठेंगे। और हम जैसे साइकोलॉजिस्ट, हम जैसे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, मैं काउंसलर हूं, सब लोग अपनी जेबें भरेंगे आप लोग की इस कमजोरी की वजह से। तो कैसा करना है, बदलाव कैसा लाना है, सिंपल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। द का जो स्टेम है, मिडिल जोन से डबल करना है, इक्वल नहीं करना है, डबल करना है। इंटेलेक्ट को अच्छा खासा बड़ा करना है, स्टेम्स को बैलेंसिंग करनी है। कैसा करेंगे, इधर देख लो स्क्रीन के अंदर, इसको एग्जैक्टली डबल करना है, मिडिल जोन से डबल। तो टी का स्टेम, एच का स्टेम, एल का स्टेम, के का स्टेम, सबके स्टेम आपको डबल करने हैं। मिडिल जोन का साइज जो है उसका अप्रोक्सीमेटली डबल, अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा तो भी चलेगा। इसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते 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 आपके ब्रेन के पैटर्न्स बदलना चालू हो जाएगा, और आपका ये जो इमोशनल नेचर है वो चला जाएगा, इंटेलेक्ट काम करना स्टार्ट करेगा। और एक बार इंटेलेक्ट काम करना स्टार्ट करेगा तो पढ़ाई से लेकर लड़ाई सब चीज जबरदस्त चलेगी, मैं किसकी गारंटी दे सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे दोस्तों, इसको मार्क करके रखना। कैसा जोन को बैलेंस करना है, दो तीन स्लाइड के बाद फिर से दिखाऊंगा जब टी की चर्चा करूंगा। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, 4 चीजें मैंने कवर कर दी, 2 और चीज कवर करूंगा और आज के सेशन को खत्म करूंगा। डी, जिस तरीके से जो बच्चे डी लिखते हैं ये सही डी नहीं है। नेक्स्ट डी इज ऑल्सो नॉट गुड, सो बोथ दिस डीज नीड्स टू बी रिमूव्ड। अगर आपके हैंडराइटिंग में दोनों डी है, ये दोनों डी को तुरंत निकालना पड़ेगा। कैसा निकालेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये डी में फर्क क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला डी देखते हैं, ये फर्स्ट डी कैसा फॉर्म किया, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। यहाँ पे पेन को टच किया, फिर मैंने एक कर्व बनाया, ऊपर गया, लूप बनाया, वापस नीचे आया। ध्यान से देख लो सब लोग। I'll show it once again. It will start here, make a curve, it will go up, make a loop and come down. ये ऐसा बनेगा डी। तो ये ऐसा जब बनता है जिसका भी डी है, ये डी सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। यानी कि ये जो बंदा है काफी सेंसिटिव है, कोई भी अगर तुमको कुछ बोल देगा, अभी कोई टीचर ने तुमको हल्के से डांट दिया, अब मुंह सूज जाएगा। सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। जब 2010 में ये साइंस जब मैंने सीखा था, तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही टॉक दे रहा था। 10वीं के बच्चे थे जिनकी 10वीं हो गई थी, बस वेकेशन में आए मेरे पास, और मैंने उनको बोला कि देखो हैंडराइटिंग से ये सब चीजें पता चलती है। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला सर मेरा भी ऐसा ही वाला ही डी है। तो मैं बोला तो क्या हो गया? याद है सर पिछले साल आपने मुझे मैथ्स में अलजिब्रा की किताब जब मैं बराबर से लिख नहीं रहा था तो आपने बहुत जोर से डांटा था मुझे।
बोला इतना याद तो है नहीं मुझे। तो डांटने वाला भूल जाता है, डांट खाने वाला याद रखता है। तो बोला हाँ फिर क्या हो गया? तो बोले सर मैं 15 दिन तक अलजेब्रा बुक को हाथ नहीं लगाया आपके डांटने की वजह से। अच्छा, नुकसान किसका? उसका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। मेरा इंटेंशन क्या था कि वो सुधरे, लेकिन मैं जान नहीं पाया ये सेंसिटिव लड़का है, और उसका भी नुकसान हो गया। 15 दिन तक किताब को हाथ में नहीं लगाया, मेरा भी नहीं हुआ, दोनों का नुकसान हो गया। तो ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर बहुत रहती है, और ये सब इमोशंस ही हो जाते हैं। इधर उधर सब सीरियल्स देख देख के, ये सब फालतू सब चीजें देख देख के हम भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी 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 चीजें, छोटी मम्मी डैडी ने क्या थोड़ा सा बोल दिया, मुंह सूख जाता है, गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा हो गया तो सर अभी के अभी चाहिए। अगर माँ बाप बोलेंगे हम बाद में देख, अभी के अभी चाहिए। आजकल के बच्चों का अभी के अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी। ऐसा बात करता है जैसे कि ये कमा के लाता है, ठीक है ना। ये सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे थोड़ा सा। इस डी को बदलना है। दूसरा भी डी और खतरनाक है ना। ये जो नेक्स्ट डी है ये ऊपर से जाकर, ध्यान से देखो, ये ऊपर से जाकर नीचे आता है, फिर लेफ्ट के तरफ कर्व बनाता है। तो अगेन इट इज अ क्लॉ। सी इट वंस अगेन। ये ऊपर से आया, इट केम फ्रॉम द टॉप, ऑन द लेफ्ट इट बिकम्स अ क्लॉ। सो दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग सेल्फ। जो भी बच्चे ऐसा लिखते हैं, जो भी इंसान ऐसा लिखता है, खुद को चीट करता है, खुद को तकलीफ देता है। अभी किसी ने कुछ बोल दिया तो सामने वाले को कुछ नहीं बोले, खाना नहीं खाएगा, घंटों खड़े रहेगा, चल के जाएगा, खुद को तकलीफ देगा। दुनिया का प्रॉब्लम है तो खुद को तकलीफ देगा। तो ये शरीर में पैर में दर्द से लेके, घुटनों में दर्द से लेके, किडनी स्टोन से लेके बहुत सारी चीज़ें इनको हो जाएगी, बिकॉज खुद के शरीर को ये लोग तकलीफ देते हैं। तो काफ़ी बीमार पड़ने के चांसेस, स्पेशली घुटनों के नीचे, बिकॉज इनको बहुत खड़े रहने की आदत है। फिजिकल पनिशमेंट इनको बचपन में मिलता है, और ये बड़े होने के बाद में फिजिकल पनिशमेंट देने में बहुत मज़ा इनको आता है, मारना पीटना। और खुद भी मार खाया रहेगा बचपन में, तो दुनिया को मारते फिरेगा। तो ये चीटिंग सेल्फ है, तो ये नेगेटिव। तो कौन सी डी लिखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। हाउ टू राइट डी, विच डी टू राइट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देख लो सब लोग, ये रेक्टिफाई करेंगे हम। ऐसा डी लिखना है, ऐसा डी लिखना है। तो कैसा लिखेंगे, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। वी स्टार्ट हियर, वो टच होगा स्टेम तो भी चलेगा, ओपन रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ से पेन चालू होगा, विल मेक अ कर्व, इट विल गो अप, और उसी लाइन को रिट्रेस करके नीचे लाना है। समझ में आया सबको? फिर से एक और बार देख लो। वी स्टार्ट हियर, वी मेक अ कर्व, वी गो अप, उसी लाइन को रिट्रेस करके नीचे लाना। तो ऐसा डी जब लिखेंगे, एक तो मिडिल जोन से डबल कर देना स्टेम को, और लूप को निकाल देना, तो आपके अंदर की सेंसिटिविटी निकल जाएगी, और आप इंटेलेक्ट लेवल पे सोचना स्टार्ट करो। ठीक है यार, टीचर ने डांटा, इसका मतलब मुझे सुधरना पड़ेगा यार। संत कबीर कहते हैं कि निंदक के साथ रहो, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारी गलतियां बताए। इधर पे कौन लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? जो तुम्हारी बड़ाई मारे, जो तुमको सेल्फी में सबसे ज्यादा लाइक करे। ये नहीं है जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारी गलतियां निकाले, तो ही तो हम सुधरेंगे। ये समझ लेना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये चेक कर लेना अपने हैंडराइटिंग में और इसको बदल देना। कमिंग टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक है ये टी। जिसका टी में गड़बड़, 80% लाइफ में गड़बड़। 80%, टी इज 80%। सब लोग ये वाले टॉपिक पे तो दम ध्यान दे देना। अभी तक सोते रहेंगे तो अभी ध्यान दे देना बराबर से, है ना। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं हमेशा जोन और टी पे सबसे ज्यादा काम करता हूँ। तो जैसा ही जोन और टी पे हम काम करते हैं तो 90-95% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो व्हाट इज दिस टी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। टी के दो हिस्से होते हैं, इट हैज अ स्टेम एंड अ क्रॉस बार। इसके पास एक स्टेम है और क्रॉस बार है। अब ये स्टेम का मतलब होता है कंप्लीट स्टेम, और नीचे की तरफ जो कर्व आया हुआ है, जो नीचे की तरफ कर्व आया हुआ है, वो कंप्लीट होना चाहिए। जिसका भी वो कंप्लीट नहीं है तो गड़बड़ है, वो रॉन्ग टी है। मेरे दोस्तों,
51 वेराइटीज ऑफ टीज होते हैं, 51। मैं सब नहीं बताऊंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ये तो पूरा कोर्स होता है जो 45 आवर्स में मैं सिखाता हूँ। एनालिसिस के लिए हमको 2 घंटे लगते हैं, पूरा एक इंसान के हैंडराइटिंग को पूरा एनालिसिस करके क्या सही है क्या गलत है बताने के लिए हमको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सो टी हैज 2 पार्ट्स, द स्टेम एंड द क्रॉस बार। ये स्टेम आप हो और क्रॉस बार आपके जिंदगी के गोल्स को कनेक्ट करता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, 80% इंपॉर्टेंट होता है टी। चेक कर लो आप सबके हैंडराइटिंग में। फर्स्ट वाला टी जो है, आफ्टर ड्रॉइंग द स्टेम वी लिफ्ट द पेन एंड पुट द क्रॉस बार एट द टॉप। हम क्रॉस बार को एकदम ऊपर डालते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस बार एट द टॉप, ठीक है ना। सेकेंड वाला, हम स्टेम बनाते हैं, देन वी पुट द क्रॉस बार इन द मिडल, बीच में डालते हैं, बीच में क्रॉस बार इन द मिडल। मेजॉरिटी यहाँ पे ये मिडल वाले या फिर ये थर्ड वाले रहेंगे। फर्स्ट वाला तो रेयर रहेगा। तो काफी सारे बोले नहीं सर, नहीं सर मेरा फर्स्ट है। मैं आपको बताता हूँ वो फर्स्ट नहीं, वो सेकंड है, क्योंकि स्टेम बड़ा नहीं है। चेक करो सबसे पहले, अपना स्टेम बड़े रहेंगे, वो बड़े स्टेम में ऊपर जो डालता है उसका फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला एकदम टॉप में, सेकंड वाला बीच में और थर्ड वाला एकदम नीचे। अधिकांश लोगों का नीचे गिरता है, कुछ लोगों का बीच में गिरता है, और रेयरली कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत ऊपर डालते हैं क्रॉस बार को। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, सिंपल है, हाई गोल्स इन लाइफ। जो भी बच्चों का, जो भी इंसान का क्रॉस बार एकदम ऊपर गिरता है उसकी जिंदगी में गोल्स बहुत हाई होते हैं, हाई गोल्स इन लाइफ। वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके शरीर में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती है, उनके शरीर की फ्रीक्वेंसी 67 हर्ट्ज होती है। कभी बीमार कुछ नहीं पड़ेंगे। साल में कभी एक बार थके तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, वरना ये बीमार नहीं पड़ता। अभी जैसे कि सर्दी खांसी बुखार आता है मेरे पास, ब्रजेश सर है ना, मुझे आपके पास आना है, कभी आओ? तो बोले सैटरडे संडे नहीं यार, सैटरडे संडे तो बहुत प्रोग्राम है मेरे। फिर मैं बोलता हूँ एक काम कर, मंडे को आ। तो सर्दी आती है, खांसी आता है, बुखार आता है, मंडे को बोलता है कि ब्रजेश सर आओ क्या? मैं नहीं यार, मंडे को मेरे को थोड़ा उधर पे कल्याण की तरफ जाना है, बाद में तू आ। तो बेचारी बीमारी आती ही नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि मेरे जिंदगी में बहुत बड़े गोल्स है। तो जो भी अपने टी के क्रॉस बार को बहुत ऊपर डालता है उसका लाइफ में गोल्स बहुत हाई रहते हैं। मेरी मम्मी है, शी इज 70+, शी इज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1970s, 1970 में उसने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था। उसको पढ़ने नहीं मिलता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो घर में बंद करके रख देते थे। तो मेरी मम्मी खिड़की से कूदकर नदी में तैरकर दोस्त के घर पे जाके कपड़े बदल कर अपना पढ़ाई करने जाते थे। इधर पे तो टीचर्स लोग को फोन करके पूछना पड़ता, बेटा अभी तक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया, कितने? अरे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से तेरे मन में प्रॉब्लम है, इसके लिए तेरा नेटवर्क भी स्लो है। तेरे अंदर कोई फेफड़े में चारने का कॉन्फिडेंस है नहीं, तेरे अंदर कोई गोल्स तो है नहीं, तेरे जिंदगी में गोल्स ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में। हार्वर्ड में सर्वे हुआ था, बच्चों को पूछा गया था कि आप में से कितने सारे जन के लाइफ में गोल्स है। 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स। ये तीसरे वाले, नो गोल्स, है ही नहीं गोल। सुबह उठते हैं, 7 बजे का स्कूल हुआ करता था, 6:30 बजे उठते। कुछ लोग रात को यूनिफॉर्म पहन के सोते, उठते साथ ही वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाके जमा हो जाने का। कुछ लोग कॉलेज में जमा होते, कुछ लोग स्कूल में जमा होते। 4 पीरियड खत्म हो तो आज का पीरियड कैसा भी खत्म हो गया। फिर बाद में कॉलेज छूटेगा, उधर पे बाहर बैठे रहने का, बाइक के ऊपर उल्टा झाड़ू सर के ऊपर करने का, थोड़ा स्टाइल बिल मारने का, फिर शाम को जाके क्लासेस में जमा हो जाने का, फिर बाद में चाइनीज बिल, सोडा पब और क्या बोलते मंचूरियन, ये सब खाने का। फिर क्या बोला, किधर बोला, किसने बोला, मेरे बारे में बोला, ऐसा कैसा बोला, क्यों बोला, काहे के लिए बोला, कौन बोला। फिर बेशरम के साथ रात को सो जाने का, फिर वापस सुबह उठने का, क्या करने का आज, चलो आज जाके कॉलेज में जमा हो जाते, क्लासेस में जमा होते। कोई गोल ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है। जिसके लाइफ में गोल्स बहुत हाई होते हैं ना, उसको बहुत काम रहता है करने के लिए।
तो हाई गोल्स के लिए टी का क्रॉस बार ऊपर, तो जिनका बीच में गिरता है एवरेज गोल्स, कभी खुशी कभी गम, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। एग्जाम बराबर नजदीक आएगा तो 15 दिन पहले किताब खोलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मार्क्स लेकर आ जाते हैं। और जो एकदम नीचे डालते हैं दे हैव लो गोल्स इन लाइफ। ये जो बीच में डालते हैं वो महीने में एक बार बीमार पड़ते हैं, और जो एकदम नीचे डालते हैं वो हफ्ते में एक बार बीमार पड़ते हैं। उनके शरीर तो सिर्फ बीमारियों का दुकान है। सर बुखार आया सर, दांडी यात्रा पे रहते हैं तीसरे वाले हमेशा। अभी अपने दिवाली में महालक्ष्मी की पूजा होती है और पैसा सबको कमाना। अगर मैं इधर पूछूंगा आप में से कितने सारे जन को पैसा कमाना, बोले यस सर हम सबको कमाना है। तो अपने इंडियन कल्चर में महालक्ष्मी, पैसे को महालक्ष्मी कहते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, दिवाली के टाइम पे नोट बीट रख के पूजा करते, टिन 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 टिन, और डायलॉग भी मारते, सिद्धू जी दिवाली का वक्त है, दरवाजा खुला रखना लक्ष्मी आएगी। तो बोले शेखर जी दिवाली का वक्त है, आपका भी दरवाजा खुला रखना, आपके घर से निकलेगी तो ही तो मेरे घर आएगी। तो ऐसा मस्ती भी करते हैं, लेकिन इंडियंस लोगों को महालक्ष्मी का मतलब मालूम नहीं है। ध्यान से सुनना सब लोग, महालक्ष्मी का मतलब होता है महालक्ष्य, त्याच्यानंतर मी, महालक्ष्य त्याच्यानंतर मी। यानी कि जिंदगी में पैसे कमाने तो पैसे के पीछे नहीं जाना, बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। महालक्ष्य त्याच्यानंतर मी, आपलं तर काय, आधी मी नंतर माझा लक्ष्य, नंतर ते महा ते बघूया ते काय करायचं, फिर बाद में देखेंगे क्या करने का, मैं नहीं, पहला लक्ष्य। तो टी के क्रॉस बार को ऊपर डालना स्टार्ट करो आज से, देखो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए एंड में बता दो, 2-3 स्लाइड्स और बता देता हूँ। कुछ लोगों का टी का क्रॉस बार पीछे गिरता है, कुछ लोगों का क्रॉस बार स्टेम पे गिरता है, कुछ लोगों का क्रॉस बार स्टेम के आगे गिरता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। पीछे गिरता है बिहाइंड रियलिटी, आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। प्रोकास्टिनेटर, पोस्टपोन्ड करने की आदत। जो स्टेम पे गिरता है ये परफेक्ट है, जिसका स्टेम पे गिरता है वो रियलिटी में जीता है। हुआ है तो हाँ बोलेगा, नहीं हुआ है तो ना बोलेगा, और एक्सेप्ट करेगा अपने काम को, रियलिटी को बताएगा, रियलिटी में जिएगा। और तीसरा वाला अहेड ऑफ रियलिटी, बहुत ही फ्यूचर में पड़ा रहता है, जिसका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है लेकिन आज में कुछ काम नहीं कर पाता। तो विच इज अ परफेक्ट टी, सब लोग ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर, 80% टी है, इधर बिगड़ना नहीं, बता दे रहा हूं मैं आपको। परफेक्ट टी कैसा लिखना चाहिए, ऐसा, एक तो स्टेम बड़ा होना चाहिए और टी का क्रॉस बार ऊपर, क्रॉस बार एट द टॉप, क्रॉस बार ऑन द स्टेम, ना पीछे ना आगे, बराबर स्टेम पे गिरना चाहिए। क्रॉस बार लिटिल लॉन्गर, थोड़ा लंबा डालो क्रॉस बार, एंथुजियाज्म, एनर्जी बहुत पावरफुल रहेगी। कोई भी काम हाथ में लिया हो कंप्लीट होगा, जिसका भी क्रॉस बार लंबा रहेगा तो। एंड बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट के तरफ जितना लेंथ है उतना ही राइट के तरफ होना चाहिए। एग्जाम्पल सब लोग इधर पे देख लो, इसको कहते हैं, दिस इज द वे यू आर सपोज्ड टू। सब लोग ध्यान से इस सैंपल को देखो, ये जो राइट लिखा है ये मिडिल जोन है, और टी का स्टेम देखो एग्जैक्टली डबल हुआ है, मिडिल जोन का एग्जैक्टली डबल अपर जोन हुआ है यहाँ पर। तो मिडिल का डबल अपर जोन, टी का क्रॉस बार एकदम ऊपर और लंबा। इस तरीके से जो भी बच्चे अपने हैंडराइटिंग को लिखेंगे, आप देख लो बराबर से, मिडिल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल अपर जोन, टी का क्रॉस बार एकदम ऊपर और टी का क्रॉस बार एकदम लंबा। ये तरीके से जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। अभी लास्ट वाला पैरामीटर बोलते हुए आज के सेशन को मैं यहाँ पे एंड करूंगा, और 2-3 और चीजें फटाफट बता दूंगा आपको, एंड देन ये ग्राफोलॉजी का थोड़ा सा डिटेल बताकर आज के सेशन को मैं एंड करूंगा। और ये मुझे ऐसा लगता है छठा पैरामीटर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द 6th पैरामीटर हियर, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोअर जोन कहते हैं, GJYZ। ये GJYZ में हमेशा आपको लूप्स डालने चाहिए, आपके हैंडराइटिंग में लूप का होना बहुत जरूरी है। इसको हम लोअर जोन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द लोअर जोन, इसको हम लोअर जोन कहते हैं। सब लोग स्क्रीन पे फिर से देखेंगे,
मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि इसमें लूप होना चाहिए, यानी कि ये जी बनाया, ये लूप परफेक्ट होना चाहिए। ये वाई में भी लूप होना चाहिए, जी बनाए या वाई बनाए या जे बनाए, इसमें लूप होना चाहिए। लोग कैसा लिखते हैं, लोग ऐसा लिखते हैं, लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा छोड़ देंगे, कुछ लोग का जी ऐसा रह जाएगा, कुछ लोग ऐसा गार्ड बीट बनाएंगे, कुछ लोग ऐसा क्लॉ बनाएंगे, ये सब गलत है। परफेक्ट लूप होना, जैसे कि मैंने बॉय लिखा तो BOY बॉय, इसको बोलते हैं लूप। तो जिसका भी लूप वो भी मिडिल जोन का डबल होना चाहिए, अपर जोन भी मिडिल जोन का डबल होना चाहिए, लोअर जोन भी मिडिल जोन का डबल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से दिखा रहा हूं मैं, अब ये वर्ड लिखा मैंने गर्ल, तो GIRL में, तो ये हो गया मेरा मिडिल जोन, ये हो गया अपर जोन, इसको और थोड़ा बड़ा करो, ये हो गया मेरा लोअर जोन। इसमें लूप बराबर होना चाहिए, यानी कि इस ये जो साइज है इसका डबल साइज ये जाना चाहिए, इतना आपको ख्याल रखना है। तो G बनाओ, Y बनाओ, J बनाओ, Z बनाओ, सब में लूप। तो अभी बोलेंगे सर लूप में एकदम बड़ा बनाओ क्या, एकदम बड़ा गलत, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं लूप्स बनाना। जैसे कि वापस लिख के दिखा रहा हूँ, BOY बॉय, तो ये हो गया आपका मिडिल जोन, ये आपका लोअर जोन, ये आपका अपर जोन, मिडिल का डबल लोअर, मिडिल का डबल अपर, और इसमें लूप्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, जबरदस्त चीजें बदल, आप फिजिकली फिट रहोगे। लोअर जोन, जिसके भी लोअर जोन परफेक्ट होते हैं उनका फिजिकल फिटनेस जबरदस्त रहता है। सो दे हैव अ वेरी गुड फिजिकल ड्राइव, हेल्दी फिजिकल ड्राइव, फिजिकल फिटनेस भी परफेक्ट, सब चीज परफेक्ट, एकदम जबरदस्त हेल्दी फिजिकल ड्राइव। मनी एंड रिलेशनशिप विल स्टे, फिजिकली आप बहुत फिट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, पैसा भी ठहरेगा और रिलेशनशिप भी ठहरेगा। जिनके लूप बराबर नहीं है, उनका लूप बराबर नहीं है, तो पैसा आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, रिश्ते आएंगे और चले जाएंगे, दोस्ती फॉर्म होगी और चले जाएगी। रिलेशनशिप ठहरने के लिए और फिजिकली फिट रहने के लिए जी और वाई और जे और जेड में आपको लूप्स डालने पड़ेंगे। कैसा डालना है मैंने आपको बता दिया, जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं डालना है। तो मेरे दोस्तों इसी को कहते हैं ग्राफोलॉजी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हियर फ्रॉम माय साइड, और thanks to the management, if we can take to the questions anything or we can take it to here. ग्राफोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे 45 मिनट्स 45 आवर्स लगता है इस चीज़ को बताने के लिए, शेयर करने के लिए, और जितना हो सके मैंने 6 से 7 पैरामीटर आप लोग को बता दिए। अभी आपको करना क्या है, मतलब कैसा बदलाव लाएंगे, ये पहले आप समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को बंद करता हूँ यहाँ पर और फिर पहले डिस्कस करता हूँ, सब लोग मेरे स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बदलने कही, क्या 6 का 6 चीज़ एक साथ, डोंट चेंज एवरीथिंग ऑन द सेम टाइम, एक या दो चीज़ आप बदलेंगे एक टाइम पे। कैसा बदलना है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हुए अपने हैंडराइटिंग को बदलना है। कैसे कैसे स्टेटमेंट्स लिख के रखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, स्क्रीन पे मैंने बताऊंगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहते हैं इसको, दिस इज व्हाट वी सेल। इसके लिए मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लेना। जैसे कि आपको लिख सकते हैं कि माई फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इन माई स्टडीज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मेरा फोकस, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा पढ़ाई में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आई रिपीट, माई फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इन माई स्टडीज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, I am able to remember and recollect whatever I have studied. I am able to remember and recollect whatever I have studied. तीसरा वाला, I am able to develop wonderful relationship with my family members. तीसरा वाला है कि माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ मैं अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूँ। आई एम गेनिंग पीस ऑफ माइंड, यानी कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है। तो मैं गुस्सा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, आई एम गेनिंग इनर पीस ऑफ माइंड। आई एम एबल टू हैव अ वंडरफुल करियर अहेड, आई कैन सी अ वंडरफुल लाइफ एंड वंडरफुल करियर अहेड इन माई लाइफ। मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें, ऐसा एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स लिखने का 5 से 6।
अच्छे एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स लिखने का। ये लिखते लिखते, सब लोग ध्यान से, ये लिखते लिखते आई और जे पे डॉट डालो 21 दिन तक। सिर्फ डॉट डालना, सिर्फ डॉट डालना, सिर्फ डॉट डालना, सिर्फ डॉट डालना। कॉन्शियसली आई और जे पे डॉट डालते जाना, कॉन्शियसली आई और जे पे। ये लिखते लिखते कितने देर लिखना है? 30 से 30 to 45 मिनट्स रोज का रोज। 21 दिन तक आई और जे पे डॉट, फिर 21 दिन तक स्टेम्स बढ़े, ये सेम स्टेटमेंट्स लिखते 21 दिन तक। फिर आप टी का क्रॉस बार ऊपर डालोगे, फिर वाई में लूप लेकर आओगे। ऐसा 21 डेज एक एक पैरामीटर को आपने अगर किया तो तकरीबन 4 महीने तक आपका ये पूरा ब्रेन का पैटर्न्स बदल जाएगा और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू चेंज योर हैंड राइटिंग एंड चेंज योर पर्सनैलिटी। 45 आवर्स का कोर्स होता है, पूरी चीजें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्या चीज बदलना है ये मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू सो मच। ओवर टू मैडम टू टेक द सेशंस टू द नेक्स्ट लेवल। Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Professor Prajesh Trotsky, I did not introduce you in the beginning because all were very keen to hear you out. So let me introduce you formally now because I didn't want to take much of time for people who were waiting online to hear you out. Let me introduce Professor Prajesh Trotsky in a very formal way to you. He's an academician by profession for the last 20 years and is also a certified graphologist and has a team of 100 handwriting experts who have learned under him. He's a dynamic speaker, which we all witnessed, with a streak of revolutionizing the way we learn and see things. He conducts seminars and workshops for parents, students, and teachers, coaching class owners, and non-teaching staff that changes your life with the most amazing and result-oriented science called graphology for wellness, happiness, excellence, and holistic development. Professor Prajesh's sole aim of life is to help people around him to come out from the intricacies of life. He also helps the slum children to upgrade their level of education. Professor Prajesh is also a proud member of the International Business Forum, BNI, where he represents the category of graphology in BNI Vijay chapter at Club Aquaria and served as a president of the chapter for 6 months. Sir, it was such a fantastic session. I couldn't take my ears off, I would say eyes and ears off both. And we learned a lot from you, even though you were, it was more informative for students to change because they are just beginning their life, even though we have crossed so many years. But still, whatever you instructed, I kept on writing here to check, am I able to analyze my own personality, the way in which you described? And just the 4 things which made a lot of difference we didn't realize. The way we put the dot, the way we put the stems, and the bar and the loop. I think we all will take care now and practice the way you said, one at a time, and probably that can bring a lot of difference to our life. Thank you so much, sir, for briefing. Here we have with us our convener of our managing committee, the college, Babulal Ji Todi. Sir, you would like to say something to Professor Prajesh? Yes. Yes, Professor sir. Sir, your lecture was very interesting, thought-provoking, sir. and not only that, it gives a lot of things to think about and do in life. We of course have almost crossing many years, but still there is always a hope to improve, and one can always improve with your advice and guidance. We are extremely thankful to you for sparing your time and coming to our institute to help the students who will be benefited like anything. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. I would like to add one more thing, sir. Even though you have visited our college earlier, but later on when things turn to normalcy, once the lockdown is lifted, I want you to visit once again so that we can hear you out, face to face, and maybe with a lot of learning
can happen. Thank you Sure. so much. Anyone having any question to ask can raise your hand. Someone has posted here. So there's a question in a chat box. Yeah. Student is asking, for sometimes my T stem comes upper and sometimes in the middle Ah. and sometimes at the lower. Is that a good sign? It's a inconsistent sign. So that is the problem of 80% kids today. They are not consistent with their goals. Kabhi high, kabhi medium, kabhi low. So there is shifting. So that is not right. Always it should be predominantly at the top. तो क्रॉसबार हमेशा ऊपर होना चाहिए कंसिस्टेंटली, इसलिए प्रैक्टिस करें. Okay, sir. Thank you, sir. Students, any question you want to ask? Anyone having any question to ask? I think, sir, you briefed us so well that we are all the audience are very well, knowing about the do's and don'ts while you write anything. Sir, there's a question. Yeah, that's Yeah. that's why I looked at it. Mostly I sir. don't write stems in I. So the people, those who don't write stems on I, crossbar, they have an independent mindset. They will not stay with the parents, but they will be connected with the parents. Independent, staying separately, but connected with the parents. The first example which we saw, the students will stay with the parents, but will not connected. But these people will be connected with the parents, but they will stay separate with the crossbars. Absence of crossbar gathers. Any other question? Thank you. I think we are done. I pass on to our Professor Chiranjeev Roy to extend the vote of thanks. A very lovely good afternoon to everyone present over here. An ignited mind is the most powerful weapon on the earth, above the earth and under the earth. And this is got through the education. Education is the most profitable investment for the near future. On behalf of Ghanshyamdas Jalan College, Science, Commerce and I, Mr. Chiranjeev Roy, Assistant Professor of Botany, it's a great honor and privilege to stand before you to deliver a vote of thanks. First of all, I would like to propose heartily vote of thanks to our resource person, Professor Prajesh Toski, a graphologist at NTS EduSys, for gracing today's webinar by accepting our invitation from his busy schedule. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address on Know Your Personality by Handwriting and Signature. This pseudoscience is very much helpful to know the psychological state of a person by analyzing their handwriting. I am sure that all the participants have taken note of your suggestion and will be discussing amongst them by analyzing their own handwriting and others too, to read their mind. Now, I am very much sure that students, definitely you will be going to read your professor's mind too, isn't it? And everyone will going to improve their handwriting after attending your lecture. We are grateful to the ABVM Trust, Sri Nirmal Junjunwala ji, Vice President and Secretary Legal, Sri Babulal Sodi ji, Convener, and Dr. Rajeshwari Ravi, Director and in charge principal of our college, for taking an initiative to hosting and organizing Wisdom webinar series with her new ideas and for her constant support. I would also like to extend my gratitude to IT department, Professor Ravi Prakash Jaiswal, our technician for their technical support, Mr. Virag and Vinay, my colleague and non-teaching staff for arranging and keeping everything ready before the webinar, so that the webinar goes smoothly. Finally, I would like to take this opportunity to thank participants, dear students and teachers. Thank you for participating in this webinar. Without your participation, a webinar would not be successful as it is. I would like to request all the participants to kindly fill the feedback form.
The link for the feedback form has been provided in your Zoom as well as YouTube chat box. Only after filling the feedback form, your attendance will be marked and an e-certification participation e-certificate will be provided to you. Once again, thanks to everyone. Over to you, Dr. Rajeshwari Ravi, ma'am. Thank you so much, sir. Once again, thank you, Chiranjeev, for that wonderful vote of thanks extended. And also to our resource person for today, Professor Prajesh. I would like to thank you once again, sir. In a short notice, I'll still appreciate you accepted our invitation and gave us so much time, briefing us in detail about in the first session itself. Probably I'm looking at if you could come and hold a certificate program in handwriting analysis for our students. We would love to host that in our college, sir. Definitely, we can go for it. Yeah. So thank you. So that's what we are looking for. We can throw it open to more people to come and do a certificate course of handwriting analysis under you. Right. I do conduct it for a B.Ed college, Kapila Khandwal. Okay. So where the second year B.Ed students, we conduct a 50 hours program in the premises of the college. But right now, since lockdown is there, we could not plan it out. We all are waiting for the things to get normalized, life to come to normalcy. And once it is done, I definitely look forward for you to come and hold this session and certificate. I'm just sharing my assistant's number here. Those who want can get a number, be in touch with me. Tanas, if you can share the numbers. If anyone has some questions to ask more, they can share. Tanas, if you're there, you can share both the contact details. Yeah. So these are my two assistants, Tanas and Krupa. Anything, if you want, you can get back to me. Okay. We have our email ID also. Thank you so much. Audience could note that. Once again, sir, thank you from all of us, me, Dr. Rajeshwari Ravi, the director and in charge principal of the college, and from all our board members and our convener who was there throughout, and also maybe Junjunwala sir is there somewhere. He was also attending your session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.